السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ مکمل ناول حصار تیری محبت کا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ تو آئیے ناول کی طرف چلتے ہیں۔ باہر بہت تیز ہوا چل رہی تھی، بادل بھی گرج رہے تھے، بس بارش شروع ہونے ہی والی تھی۔ یوں لگتا تھا اس طوفانی رات میں قیامت بیت گئی ہو، جیسے ایک نازک پھول اپنی خوشبو سے محروم ہو گیا ہو۔ وہ اپنے کمرے میں زمین پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جس پر ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے نشان تھے۔ اسے لگا جیسے قیامت آ کر چلی بھی گئی اور وہ اب تک زندہ تھی۔ کیوں تھی وہ زندہ؟ وہ قسمت کی اس ستم ظریفی پر مر جانا چاہتی تھی۔ باہر زوروں سے بارش شروع ہو چکی تھی۔ ایک دم وہ اٹھی، لان سے گزرتی بھاگتے ہوئے لان میں آ گئی جہاں تیز بارش برس رہی تھی، اور وہ آسماں کو دیکھ کر چیخ چیخ کر رونے لگی۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ وہ اس رسوائی پر مر جانا چاہتی تھی۔ وہ حلق کے بل چلا رہی تھی، رو رہی تھی۔ روتے روتے جب وہ تھک گئی تو وہیں لان میں بیٹھ گئی اور سر گھٹنوں پر ٹکا دیا۔ بارش ہنوز جاری تھی۔ آج کا دن سب کے لیے بہت خاص تھا، کیونکہ آج احمد ولا کے دونوں لاڈلے سپوت فرحاد اور زین امریکہ سے واپس آ رہے تھے۔ سب بہت خوش تھے۔ ناہید بیگم کی خوشی تو بہت زیادہ تھی، کیونکہ ان کے دونوں لاڈلے 4 سال بعد واپس آ رہے تھے۔ زین تو پھر بیچ میں 1-2 بار آ گیا تھا، پر فرحاد نے تو ان سالوں میں ایک بار بھی گھر کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ حاجرہ سب کچھ تیار ہے؟ ناہید بیگم نے ملازمہ سے پوچھا۔ جی بی بی صاحبہ، سب تیار ہے، ملازمہ نے جواب دیا۔ یہ سب لڑکیاں کہاں ہیں؟ بلاؤ انہیں، ناہید بیگم نے اسے کہا۔ آج بہت دل سے وہ تیار ہوئی تھی، لائٹ پنک کلر کی فراک کے ساتھ وائٹ چوڑی دار پاجامہ، ساتھ پنک دوپٹہ، گلے میں ڈالے شہد رنگ بالوں کو کھلا چھوڑے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کانسی سنہری آنکھوں میں کاجل بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اس کی دمکتی رنگت مزید کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ آج کا دن بہت خاص تھا۔ زین واپس آ رہا تھا، وہ بہت خوش تھی۔ اس دن کا اسے بہت انتظار تھا۔ وہ آ جائے گا جلد، ان کی شادی ہو جائے گی اور وہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ یہ سوچ کر ہی وہ بہت خوش ہو رہی تھی۔ اپنے خیالوں میں گم اسے باہر گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو پرفیوم کی بوتل ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتی وہ باہر کی جانب بھاگی۔ کوریڈور سے بھاگتے ہوئے وہ سامنے سے آتے کسی زیرو سے ٹکرائی تھی۔ زمل کا سر بہت زور سے اس کے سینے پر لگا تھا۔ زین کی توقع کرتی اپنا سر تھامتے اس نے سامنے دیکھا تو فرحاد کو دیکھ شرمندہ ہوئی اور سنبھل کر پیچھے ہوئی۔ سوری فرحاد بھائی، السلام علیکم۔ اتنے عرصے بعد فرحاد کو دیکھ کر خوش دلی سے اس نے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام زمل۔ فرحاد ایک پل اسے دیکھ کر ٹھٹکا تھا، پر اگلے ہی پل سنبھل کر اس کے سلام کا جواب دیا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ کتنے سال بعد گھر واپس آئے ہیں، لگتا ہے آپ کو ہم سب کی یاد نہیں آتی۔ وہ رسماً مسکرائی۔ ایسی بات نہیں زمل، بس مصروفیات تھیں۔ تم سناؤ کیسی ہو؟ ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہو، وہ مسکرا کر پوچھنے لگا۔ جی ٹھیک ہوں، زین کہاں ہے؟ زمل نے بے قرار ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ آ گیا زین۔ زین دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ زمل نے محبت سے زین کی جانب دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ اس کی آنکھوں کی بے قراری فرحاد صاف دیکھ سکتا تھا۔ ہیلو بیوٹیفل، کیسی ہو؟ وہ دراز قد اور ہینڈسم تھا، دیکھنے والوں پر اچھا تاثر چھوڑتا تھا۔ ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ وہ محبت سے بولی۔ میں ایک دم فٹ، وہ مسکرایا۔ اتنے میں ناہید اور فاطمہ بیگم بھی لاؤنج میں آ گئیں۔ ناہید محبت سے اپنے دونوں بیٹوں سے مل رہی تھیں۔ ملتے ہوئے ان کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اتنے میں ابیرہ اور نور بھی لاؤنج میں آ گئیں۔ گھر میں تو جیسے رونق لگ گئی تھی۔ توصیف صاحب کے 3 بچے تھے، سب سے بڑے احمد، پھر نفیس اور سب سے چھوٹی فاطمہ۔ توصیف صاحب کی اولاد میں احمد سب سے سمجھدار تھے۔ ان کی شادی ناہید سے ہوئی۔ دونوں کے 3 بچے تھے، فرحاد، زین اور ابیرہ۔ فرحاد 28 سال کا تھا، اس نے MBA کیا تھا اور انگلینڈ میں ہی بزنس سٹارٹ کر دیا تھا، جبکہ زین 25 سال کا تھا، اس نے حال ہی میں ماسٹرز مکمل کیا تھا۔ ابیرہ دونوں بھائیوں سے چھوٹی تھی، وہ 19 سال کی تھی اور گریجویشن کر رہی تھی۔ احمد سے چھوٹے نفیس تھے، ان کی شادی فاریہ سے ہوئی۔ ان کے بھی 3 بچے تھے، علینا، نوفل اور صبرینا۔ فاطمہ توصیف صاحب کی لاڈلی بیٹی تھی۔ ان کی شادی اپنے چچا زاد علی سے ہوئی تھی۔ شادی کے بعد وہ دونوں قطر شفٹ ہو گئے تھے۔ زمل اور نور وہیں پیدا ہوئی تھیں۔ 7 سال بعد علی ایک کار ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تھے۔ تب سے فاطمہ بچوں سمیت پاکستان اپنے بھائی احمد کے پاس شفٹ ہو گئی تھی۔ زمل 21 سال کی تھی اور پرائیویٹ ماسٹرز کر رہی تھی، اور نور ابیرہ کی ہم عمر تھی، اور احمد اور ناہید کو زمل بچپن سے ہی بہت پیاری تھی۔ زمل اور زین کی اٹیچمنٹ دیکھ کر انہوں نے بچپن میں ہی دونوں کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ احمد صاحب کے ساتھ ہی نفیس صاحب کا گھر تھا۔ دونوں بھائیوں میں بہت محبت تھی، وہ اکٹھے بزنس کرتے تھے۔ احمد ولا میں رات کو خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ فرحاد اور زین کی واپسی پر آج گرینڈ ڈنر تھا۔ نفیس صاحب کی فیملی بھی انوائٹڈ تھی۔ کھانے سے فری ہو کر سب بڑے لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، جبکہ باقی سب کزنز لان میں تھے۔ زین تو ضروری کام سے نکل گیا تھا۔ اس بات پر زمل کو بہت غصہ آیا، پر وہ چپ کر گئی کہ بعد میں اس کی خبر لے گی۔ فرحاد کافی کا مگ ہاتھ میں پکڑے دلچسپی سے نور، نوفل اور ابیرہ کی لڑائی دیکھ رہا تھا، جبکہ علینا بہت گہری نظروں سے فرحاد کو تک رہی تھی۔ کوئی اندھا بھی دیکھ کر بتا سکتا کہ وہ اسے کتنا پسند کرتی ہے۔ فرحاد بھائی، آپ نے زین کو دیکھا؟
अंदर से आती सबरीना ने फरहाद से पूछा, जो बहुत बेजार लग रही थी। जैन किसी दोस्त से मिलने गया है, देर से आएगा। फरहाद से पहले ही जमल बोल पड़ी। उसके अंदाज में कुछ ऐसा था कि फरहाद ने गौर से उसे देखा। शायद वो सबरीना को जताने वाले अंदाज में कह रही थी, अच्छा। सबरीना मुंह बनाती दोबारा अंदर चली गई, जबकि फरहाद अब तक जमल को देख रहा था। उसे जमल में एक गैर मामूली कशिश अपनी जानिब खींच रही थी। वो उसे देखने से गुरेज बरत रहा था। रात के 11 बजे थे। ग्रैंड डिनर खत्म हो चुका था। नफीस साहब और उनकी फैमिली जा चुकी थी। जैन अब तक वापस नहीं आया था। जमल को बहुत गुस्सा आया था। जिस शख्स का इंतजार वो इतने अरसे से कर रही थी, उसे कोई परवाह ही नहीं थी, जो अभी तक इससे ढंग से मिला ही नहीं था। वो बेचैनी से लॉन में टहल रही थी जब फरहाद वहां आया। क्या हुआ जमल, उदास लग रही हो? उसका लहजा गंभीर था। जमल ने मुस्कुराकर देखा। कुछ नहीं फरहाद भाई, जैन का इंतजार कर रही हूँ, अभी तक नहीं आया। वो गेट की जानिब देखते हुए बोली, अच्छा तो जैन का इंतजार किया जा रहा है। फिक्र नहीं करो, वो आ जाएगा। उसे अक्सर लेट आने की आदत है। फरहाद ने उसकी परेशानी देखते हुए कहा, अच्छा उसे तो मैं बाद में देखती हूँ। आप सुनाए, कैसा बिजनेस चल रहा है आपका? वहाँ कोई लड़की पसंद नहीं की आपने? जमल ने मुस्कुराते हुए शरारती अंदाज में पूछा। इस तरह वो फरहाद को प्यारी लगी। हाँ, नहीं, मुझे आज तक कोई लड़की पसंद नहीं आई, और अमेरिका की तो बिल्कुल नहीं। फरहाद उसकी बात पर हंसते हुए बोला, अच्छा वो क्यों? जमल ने पूछा। बस दिल को कोई अच्छी ही नहीं लगी। उसने जमल की हसीन आंखों में देखते हुए कहा। इन आंखों में ऐसा कुछ था जो उसे अपनी जानिब खींच रहा था। फरहाद भाई, आपकी बात सुनकर तो मैं बहुत मायूस हुई। जितने आप हैंडसम हैं, एक लड़की तो आपको पसंद आनी ही चाहिए। जमल शरारती अंदाज में बोली। अच्छा, इसकी बात पर फरहाद धीरे से हंसा। चलो रात बहुत हो गई है, सो जाओ, जैन नहीं आने वाला। फरहाद ने संजीदगी से कहा और अंदर की जानिब बढ़ गया। जमल ने एक मायूस नजर दरवाजे की जानिब देखा और वो भी अंदर बढ़ गई। अवाइल अक्टूबर के दिन थे। मौसम पहले से तब्दील हो गया था। सुबह बहुत निखरी निखरी सी थी। फरहाद के कमरे की खिड़की खुली हुई थी। अंदर झांको तो मालूम होता था कि वो अभी अभी नहाकर निकला है। ब्लू जीन्स के ऊपर व्हाइट शर्ट पहने, गीले बालों को टॉवल से खुश्क करता वो आईने के सामने खड़ा था। और वो दराज कद, सुरमई आंखें और खूबसूरत नैन नक्श वाला हसीन मर्द था। उसकी उम्र 28 साल थी। आंखों में एक संजीदगी थी जो उसे बारोब बनाती थी। वो अच्छे से जानता था कि जमल और जैन बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर कल जब उसने इतने अरसे बाद से जमल को देखा तो ना जाने दिल में एक अजीब सा जज्बा जागा था, जिसे वो कोई नाम नहीं दे पा रहा था या दुनिया देना नहीं चाहता था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था जमल और जैन में कितनी मोहब्बत थी, और वो अपने भाई के हक पर कभी डाका नहीं मारना चाहता था। पर दिल को समझाना एक मुश्किल काम था। अपनी तमाम सोचों को जहन से झटकता वो मुस्कुराता हुआ कमरे से निकल गया। रात देर तक जागने की वजह से उसकी आंख देर से खुली। उसे जैन पर बहुत गुस्सा था। उसने रात काफी देर तक उसका इंतजार किया था, पर वो नहीं आया। उसे से उठती वो फ्रेश होने वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो वापस रूम में आई तो बेड पर लाल गुलाबों का बुके देख हैरान हुई थी। ये फ्लावर्स यहाँ कौन रख गया? उसने बेड से फूल उठाते हुए ताज़ा फूलों की महक अपने अंदर उतारते हुए सोचा। तभी नजर गुलाबों में रखे छोटे से कार्ड पर गई। आई एम सॉरी स्वीट हार्ट, रात दोस्तों ने आने नहीं दिया, पर आज का दिन तुम्हारे नाम। कार्ड पर लिखे अल्फाज पढ़ते ही इसका सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया और चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दरवाजे पर होने वाली हल्की सी दस्तक पर उसने सर उठाकर सामने देखना। जैन दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। आगे मेरी याद। उसे देखते ही जमल ने गुस्से से कहा, मेरे आने से पहले तो मुस्कुरा रही थी, तो अब गुस्सा क्यों? वो मुस्कुराते हुए उसके पास आया। जब तक तुम मुझे आइसक्रीम नहीं खिलाओगे मेरा गुस्सा कम नहीं होगा, वो नुज नाराजगी से बोली। अच्छा, शाम में रेडी रहना, जैन ने उसका गाल छूते हुए कहा और उसे गहरी नजरों से देखने लगा। जमल ने फौरन उसका हाथ अपने गाल से हटाया। पहले से बहुत खूबसूरत हो गई हो, वो उसका हसीन चेहरा देखकर बोला। तो जमल ने उसे घूरा। बस बहुत हो गया तुम्हारा फ्लर्ट। मोहब्बत को तुम फ्लर्ट कहती हो? जब चला जाऊं तो नाराज हो जाती हो, और मोहब्बत की बातें करूं तो फ्लर्ट समझती हो। वो उसके नरम हाथों को थाम कर बोला। जमल ने अपने हाथ उसके हाथों से खींचे, पर जैन ने नहीं छोड़े, बल्कि उसका हाथ अपने लबों से लगाने लगा। तो जमल ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया। ये क्या कर रहे हो जैन, अभी हमारी शादी नहीं हुई। जमल ने उसे भावर करवाया, पर वो हंसने लगा। तो किस करने से क्या हो जाता, तुम भी बहुत बैकवर्ड हो यार। अच्छा, शाम को रेडी रहना, अभी मुझे कुछ काम है। वो जमल की बात को नॉर्मल लेते हुए चला गया, जबकि वो जैन के रवैये पर हैरान हुई थी। शाम को जैन ने जब जमल से आइसक्रीम पार्लर चलने के लिए कहा तो जमल ने नूर और अबीरा को भी साथ तैयार कर लिया, जिस पर वो खासा बदमजा हुआ, पर मान गया। आइसक्रीम खिलाकर वो इन्हें दरवाजे पर ही ड्रॉप करते कहीं चला गया। वो तीनों मुस्कुराते हुए अंदर आई। संडे तो आते ही खत्म हो जाता है, नूर सुबह फिर कॉलेज जाना है। अबीरा बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली थी। हाँ यार, बिल्कुल दिल नहीं करता इतना जल्दी उठने का। नूर भी मुंह बसोड़ते हुए बोली और अंदर लाउंज में आ गई। जमल आपी की तो मजे हैं, आराम से सोकर उठती हैं। अबीरा सोफे पर बैठते हुए रश्क से बोली थी। कहाँ मजे हैं यार, नेक्स्ट मंथ मेरे एग्जाम्स हैं, और ऊपर से तभी अलीना आपी की शादी भी है। मैंने
ना ठीक से पढ़ पाऊंगी और ना एंजॉय कर पाऊंगी। जमल परेशानी से बोली, फिर उठकर अपने कमरे में जाने लगी। तभी फरहाद किचन से निकलता दिखाई दिया। क्या हुआ फरहाद भाई, कुछ चाहिए था? जमल उसे देखकर बोली। हाँ, कॉफी पीनी थी पर कोई है नहीं किचन में। मैं खुद बना लेता पर अभी मेरी अर्जेंट मीटिंग है। वो वजाहत देते बोला, उसकी अमेरिका वाली कंपनी में अभी मीटिंग थी। ओह, मैं बना देती हूँ, आप अपने रूम में जाकर अपनी मीटिंग अटेंड करें। वो फिक्रमंदी से बोली तो फरहाद एक ममनूनियत भरी नजर उस पर डालते पलट गया। 5 मिनट बाद वो कॉफी लिए फरहाद के रूम में आई। हल्का सा दरवाजा नॉक किया और अंदर चली आई। वो सोफे पर बैठा लैपटॉप ऑन किए मीटिंग में मसरूफ था। एक मुस्कुराती नजर उसे देखा और दोबारा लैपटॉप पर मुतवज्जो हो गया। जमल ने कॉफी टेबल पर रखी, पलट कर जाने लगी तो पाँव जोर से टेबल की नोक से लगा। जमल की चीख निकली। शायद उसका पाँव बहुत जोर से लगा था कि छोटी उंगली के पास से हल्का सा खून निकल आया। फरहाद ने जल्दी से लैपटॉप साइड पर रखा और उसे सोफे पर बिठाया। क्या हुआ जमल? वो फिक्रमंद दिखाई दिया। पाँव पर चोट लग गई। वो अपना पाँव देखते हुए बोली, कुछ नहीं होता, आप अपना काम करें। वो उसका लैपटॉप देखते हुए बोली तो फरहाद ने कुछ कहने के बजाय अपना दराज खोला और कोई ट्यूब निकाल लाया। ये पाँव पर लगा लो। फरहाद ने ट्यूब जमल की जानिब बढ़ाई तो उसने थाम ली और पाँव पर लगा ली। थैंक्स, मैंने आपकी मीटिंग खराब कर दी। जमल उठते हुए बोली, नहीं, मीटिंग तुम्हारी तकलीफ से ज्यादा जरूरी नहीं। वो सरनफी में हिलाते हुए बोला तो जमल महज मुस्कुराई। आप अपना काम करें, मैं चलती हूँ। जमल ने उसका कीमती वक्त ज़ाया होने से बचाया और मुस्कुराते हुए कमरे से निकल गई। फरहाद ने मोहब्बत से उसे जाते देखा और लैपटॉप वापस उठा लिया। वो सोने के लिए लेटी ही थी कि जैन का मैसेज आया। वो छत पर उसका इंतजार कर रहा है। जमल बिस्तर से उठी, चप्पल पहनी और छत पर जाने लगी। वाइट फ्रॉक में वो बहुत प्यारी लग रही थी। सीढ़ियाँ चढ़कर वो ऊपर आई तो जैन मुंतजिर खड़ा था। उसे सताइश से देखता पास आया। बहुत प्यारी लग रही हो, उसके हाथ थामते वो रोमांटिक अंदाज में बोला। थैंक्स, वो मुस्कुराई। वैसे किस लिए बुलाया था तुमने? मोहब्बत करने के लिए। वो उसके करीब हुआ और उसके गालों को होंठों से छूने लगा तो जमल बेअख्तियार पीछे हुई और अपने हाथ उसके हाथ से खींचे। जैन, हद में रहो, वो गुस्से से बोली तो जैन ने फिर से उसके करीब हुआ। क्या हुआ यार, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम बहुत बदल गई हो। वो नाराजगी से बोला, मैं नहीं, तुम बदल गए हो। लगता है न्यूयॉर्क जाकर तुम अपनी रवायात भूल गए हो। वो उसे एहसास दिलाते हुए बोली, उफ, तुम बहुत पुरानी सोच रखती हो। मोहब्बत में थोड़ा बहुत तो रोमांस चलता है। वो नॉर्मल लहजे में बोला, जैसे आम बात हो। तुम बदल गए हो जैन, और मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ। वो अफसोस से कहते पलट गई। पिंडू ना हो तो। जैन पहलू बदल कर रह गया। हाय जैन। वो लाउंज में सोफे पर बैठा गेम खेल रहा था जब सबरीना वहां चली आई और उसके साथ बैठ गई। हेलो, वो गेम खेलते हुए बोला। आज शाम का क्या मूड है? मेरे साथ हसन की पार्टी में चल रहे हो? वो बड़े अंदाज में बोली थी। तभी जमल भी वहां और नापसंद नजरों से इन दोनों को देखा। हाँ, चलूंगा। जमल को एक नजर देखते वो सबरीना से बोला तो वो मुस्कुराई। अच्छा, तो फिर मैं शाम में रेडी रहूंगी। जमल, तुम भी आओगी हमारे साथ? वो जानकर उसे जताने वाले अंदाज में पूछने लगी। नहीं, मैं ऐसी पार्टीज में नहीं जाती। मुंह बनाकर कहती वो दूसरे सोफे पर बैठ गई जहां अबीरा बैठी असाइनमेंट बना रही थी। वो अभी तक जैन से नाराज थी और जैन ने अब तक उसे मनाया भी नहीं था। ऊपर से वो कमबख्त सबरीना के साथ पार्टी पर भी जा रहा था। उसे मजीद गुस्सा आने लगा तो वो उठकर अपने कमरे में आ गई, पर वहां भी दिल नहीं लगा तो स्टडी रूम में चली आई। पर वहां फरहाद किसी किताब का मुताला कर रहा था। उसे देख मुस्कुराया। गुड इवनिंग, फरहाद ने कहा तो वो भी मुस्कुराई। इवनिंग। आप और जैन भाई हैं, पर दोनों कितने मुख्तलिफ हैं। वो बहुत इरिस्पॉन्सिबल है और आप इतने रिस्पॉन्सिबल हैं। वो जैन और फरहाद का मवाजना करते बोली। अच्छा, हाँ, वो ऐसा ही है, तुम उसे चेंज कर देना। वो मुस्कुराते हुए बोला। हो ही ना जाए वो चेंज। वो मुंह बसोरते हुए बोली, अच्छा, आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं? वो उसके हाथ में पकड़ी बुक देखकर दिलचस्पी से बोली, ये जॉन थॉमसन की आर्ट ऑफ लाइफ है, अच्छी बुक है, तुम पढ़ना चाहोगी? वो किताब का टाइटल बताते हुए बोला। हाँ श्योर, उसे किताबें पढ़ना पसंद था। वो फौरन बोली। फरहाद जानता था वो मुताले की शौकीन है। उसने किताब उसकी जानिब बढ़ाई जिसे जमल ने झट पकड़ लिया और कुर्सी खींचकर बैठ गई। फरहाद ने मुस्कुराकर उसे देखा और अपने लिए कोई और किताब ढूंढने लगा। वो अपने रूम में बैठा लैपटॉप पर काम में मसरूफ था जब नाहिद बेगम उसके कमरे में आई और मोहब्बत से अपने जिगर गोशे को देखा। फरहाद बेटा, कितना काम करते हो, अभी तुम्हें आए हफ्ता ही हुआ है, पर मजाल है जो तुमने कोई भी दिन इस लैपटॉप के बगैर गुजारा हो। वो शिकवा करते बोली। मामा, आप तो जानती हैं काम को लेकर मैं बहुत सीरियस हूँ। मैं अपने काम को डिले नहीं करता, साथ साथ करने का आदी हूँ। वो लैपटॉप स्क्रीन बंद करते उनकी जानिब देखते हुए बोला। अच्छी बात है, पर घर वालों को भी टाइम दो ना। वो उसके हाथ पर अपना हाथ रखते बोली। घर वालों के लिए टाइम ही टाइम है। वो मोहब्बत से बोला। तुम तो जानते हो जमल और जैन का बचपन से रिश्ता तय है, तो तुम्हारे पापा और तुम्हारी फूफो जल्द ये फर्ज अदा करना चाहते हैं। उन्होंने जमल और जैन की शादी के मुतालिक बताया। जी सही कह रही हैं, अच्छी बात है। वो बज़ाहिर मुस्कुरा कर बोला, पर अंदर कुछ टूटा था जिसकी आवाज़ भी नहीं आई। पर मैं ये चाहती हूँ कि तुम बड़े भाई हो, इसलिए पहले तुम्हारी शादी हो या दोनों की इकट्ठे हो जाए। वो काम की बात पर आते हुए बोली। मामा, आप पहले इन दोनों की शादी कर लें। मेरा अभी शादी का कोई मूड नहीं। वो अपना इरादा जाहिर करते हुए बोला। क्यों मूड नहीं? क्या तुम्हें अब तक कोई लड़की पसंद नहीं आई? वो हैरान होते हुए बोली। नहीं मामा, मुझे कोई पसंद नहीं, ना अभी मेरा ऐसा कोई इरादा है। वो बेदिली से बोला।
फरहाद, अब तुम्हारी शादी की उम्र है और मैं तुम दोनों भाइयों की इकट्ठे शादी करना चाहती हूँ। वो संजीदगी से बोली। अच्छा, फिर इस बारे में बात करेंगे। वो लापरवाही से बोला। फरहाद, मैं चाहती हूँ तुम्हारी जल्द शादी हो जाए, मेरी खुशी समझते क्यों नहीं हो? अच्छा ये बताओ सबरीना कैसी है? वो दिलचस्पी से बोली। वो सबरीना, कॉस्मेटिक्स की दुकान। वो हंसते हुए बोला और फिर एकदम समझते हुए सीधा हुआ। डोंट टेल मी आप मेरे लिए उसे सोच रही हैं। सबरीना अच्छी पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की है और तुम्हारी कज़न भी है। वो सबरीना की तारीफ करते हुए बोली। प्लीज़ मामा, क्या हो गया है आपको? वो मेरे लिए बहनों की तरह है। वो फौरन बोला। पहले जब तुमसे अलीना के मुतालिक बात की तो वो भी तुम्हें बहन ही लगती थी और अब सबरीना भी। अगर हर एक को अपनी बहन समझोगे फिर कमारे ही रहना। वो नाराजगी से बोली। तो फरहाद उनकी बात पर हंसने लगा। ऐसी बात नहीं है मामा, पर मुझे सबरीना या किसी और से शादी नहीं करनी। फिर कभी इस टॉपिक पर बात करेंगे, अभी मुझे एक मीटिंग में जाना है। वो उनकी बात टालते हुए बोला और अपना ब्रीफकेस लेते कमरे से निकल गया। नाहिद बेगम ने अफसोस से उसे जाते हुए देखा था। दाइम फरहाद का बचपन का दोस्त था। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी और नेचुरल थी। दाइम अपनी दादी के साथ लाहौर में रहता था, जबकि उसके वालिदैन की डेथ हो चुकी थी। वो इकलौता था। फरहाद इस वक्त दाइम के घर आया हुआ था। तुम कह रहे हो तुम्हें जमल से मोहब्बत हो गई है? दाइम ने तशवीश से कहा। नहीं, मोहब्बत नहीं, बस वो दिल के बहुत करीब लगती है मुझे। हालांकि मैं उसे बचपन से जानता हूँ। पहले कभी ऐसा फील नहीं हुआ उसे देखकर, पर अब पता नहीं मुझे क्या हो गया है। वो अपना सर दोनों हाथों में थाम कर बैठ गया। ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है? पर मेरे भाई, तुमने बहुत गलत जगह दिल लगा लिया है। वो तो तुम्हारे भाई से मोहब्बत करती है और उसने बचपन से उसी के ख्वाब देखे हैं। दाइम ने उसे हकीकत बताई, पर वो अपने दोस्त के लिए परेशान भी था। जानता हूँ यार, यही तो मसला है। मैं इस भंवर में नहीं फंसना चाहता, पर दिल को चैन नहीं आ रहा। वो बहुत बेबस मालूम होता था। दाइम को उस पर रहम आया। तुम ज्यादा सोचो नहीं, अपना फोकस चेंज करो, खुद को दूसरे कामों में मसरूफ कर लो और बल्कि शादी कर लो, बेस्ट है। इससे तुम्हारा ध्यान खुद ब खुद जमल से हट जाएगा। दाइम ने उसे मशवरा दिया था। मामा भी यही चाहती हैं कि मैं शादी कर लूं, पर यार जब दिल ही नहीं मानता किसी और को सोचने का तो क्या करूं? मैं मजबूर हूं। वो बेबसी से बोला। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, फिलहाल खुद को मोहलत दो। कुछ दिन बाद दोबारा इस बारे में सोचना, शायद दिल मान जाए। मैं कॉफी लाता हूँ। दाइम ने उसे तसल्ली दी और किचन से कॉफी लेने चला गया। अभी तक नाराज हो स्वीटहार्ट? वो किचन में खड़ी चिकन चाउमीन बना रही थी। ब्लैक फ्रॉक और चूड़ीदार पाजामे में मलबूस ब्लैक दुपट्टा गर्दन में लपेटे वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। बालों का ढीला जोड़ा बंधा था जो किसी भी पल खुल सकता था। वो काम में मसरूफ थी जब जैन वहां आया और बोला। हाँ, हूँ नाराज, पर तुम्हें मेरी नाराजगी की क्या फिक्र? तुम जाओ सबरीना के साथ मिलकर पार्टीज इंजॉय करो। वो जलकर बोली। अच्छा तुम जेलस हो रही हो? वो हंसकर बोला। जेलस होती है मेरी जूती, मुझे क्या, जो मर्जी करो। वो गुस्से से बोली। अच्छा तो कब तक मजीद नाराज रहने का इरादा है? वो उसके दिल का सुराबे को देखते हुए बोला। जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे। वो चाउमीन में चम्मच हिलाते हुए बोली। वैसे माफी मांगने वाली कोई बात तो नहीं, पर सॉरी। वो सेब पर स्लैब पर पड़ी टोकरी से सेब उठाते हुए लापरवाही से बोला। माफी मांगने वाली ही बात है, वो अलग बात है कि तुम्हें एहसास नहीं है। वो उसकी लापरवाही देखते जोर देकर बोली। ओके सॉरी बेबी। वो कान पकड़ मासूमियत से बोला तो वो मुस्कुरा दी। अच्छा ये बताओ तुमने अलीना आपी की शादी की शॉपिंग कर ली? वो उसकी मुस्कुराहट देखते बोला। मेहंदी का ड्रेस लिया है अभी बस। ओके आज हम शॉपिंग पर चल रहे हैं, मैं चाहता हूँ हम दोनों सेम ड्रेसिंग करें। वो सेब खाते हुए बोला। ठीक है, पर कपड़े मेरी चॉइस के होंगे। जमल ने कहा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। जैन मुस्कुराकर बोला तो वो भी मुस्कुरा दी। अबीरा और नूर लॉन में लगी कुर्सियों पर बैठी कॉफी पी रही थीं जब नौफल मुस्कुराता हुआ वहां आया। हेलो गर्ल्स, क्या हो रहा है? वो अबीरा के सामने कुर्सी खींचते बैठा। वो अबीरा से मोहब्बत करता था, पर वो उसकी मोहब्बत पर खास तवज्जो नहीं देती थी और बात हंसी मजाक में उड़ा देती थी। कुछ नहीं, अलीना आपी की शादी की बातें कर रहे हैं, बहुत मजा आएगा, खानदान की पहली शादी है। अबीरा मजे से बोली। हाँ, और दूसरी हमारी होगी इंशाल्लाह। वो अबीरा को देखते आंख दबाकर बोला तो नूर बेसाख्ता हंस पड़ी, जबकि अबीरा ने उसे गुस्से से घूरा। बकवास मत करो नौफल के बच्चे। वो आंखें फाड़ कर बोली। कहाँ है मेरे बच्चे? मुझे तो नजर नहीं आ रहे। वो हैरान होता दाएं बाएं देखकर बोला तो नूर फिर से हंसने लगी। तुम्हें बहुत हंसी आ रही है नूर। अबीरा ने अब उसे घूरा। नहीं तो। वो हंसी दबाते हुए बोली। नूर को क्यों डांट रही हो, मुझे कहो ना। वो मुस्कुराकर बोला। मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना, फ्लर्टी इंसान। वो नौफल पर तंज करते बोली थी। देखो नूर, अबीरा को मेरी सच्ची मोहब्बत फ्लर्ट लगती है। वो बेचारगी से नूर को देखते बोला। फिक्र नहीं करो नौफल, अबीरा भी तुम्हें पसंद करती है। कल ही मुझे कह रही थी कि नौफल बहुत हैंडसम है। नूर शरारत से बोली तो अबीरा का मारे हैरत के मुंह खुल गया, जबकि नौफल खुशी से निहाल होता मोहब्बत से उसे देखने लगा। सच अबीरा, मैं तुम्हें बहुत हैंडसम लगता हूँ। बकवास बंद करो, मैंने अल्लाह को जान देनी है, मैं ऐसे झूठ नहीं बोलती। और नूर की बच्ची, तुम अब मुझसे बचो जरा। अबीरा गुस्से से कहते उठी। इससे पहले ही नूर उठकर अंदर भाग गई। अबीरा उसके पीछे भागी तो नौफल भी उनके पीछे अंदर चला गया। ग्रीन ड्रेस पहने ऊंची पोनी में वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो और सैन शॉपिंग करने मॉल आए थे। दोनों ने ढेर सारी शॉपिंग की थी और अब कुछ खाने फूड कोर्ट आ गए थे।
जैन ने ऑर्डर दिया और उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ, जो अपने मासूम चेहरे और खूबसूरती से बार बार उसे अट्रैक्ट कर रही थी। मुझसे मजीद इंतजार नहीं होता जमल, बस अलीना आपी की शादी हो जाए, नेक्स्ट शादी हमारी होगी और हम हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाएंगे। वो आगे की प्लानिंग करते हुए बोला, पर तुम्हें किसने कहा मैंने तुमसे शादी करनी है? जाओ तुम इस सबरीना से ही शादी करो। जमल उसे मुंह चढ़ाते बोली, ऐसे कैसे नहीं करोगी शादी? तुम सिर्फ मेरी हो और तुमसे भी ज्यादा मेरा तुम पर हक है। सुना तुमने? वो जताकर बोला, किस हक की बात कर रहे हो? सबरीना के साथ जाते हुए तुम्हें ये भूल गया था? जमल अब तक उस बात को नहीं भूली थी। तुम अभी तक सबरीना को नहीं भूली? वो भी मेरी कजन है यार। अगर उसके साथ पार्टी पर चला गया तो क्या हो गया? एटलीस्ट वो तुम्हारी तरह बैकवर्ड नहीं है, बोल्ड है। तुम्हें भी ऐसे ही होना चाहिए। मुझे उस जैसा बनने की कोई ज़रूरत नहीं और तुम्हें यहाँ भी ऐसे ही साथ उसे ही साथ लेके आना चाहिए था। बल्कि ऐसा करो, शादी भी उसी से कर लो। जमल को जैन की बात पर बेहद गुस्सा आया था। अरे यार, कितनी जल्दी गुस्सा हो जाती हो। कूल डाउन। वो जल्दी से बोला, मोहब्बत तुमसे, सबरीना से नहीं। जमल कुछ कहने लगी तभी एक गोल्डन बालों वाली लड़की वहां आई, ब्लू जीन्स पर रेड स्लीवलेस शर्ट पहने, डार्क मेकअप किए। वो जैन को शनासाई से देखकर मुस्कुराई। हाय जैन, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। उसे देखते ही जैन उठ खड़ा हुआ तो वो उसके गले लगती बोली, जबकि जमल दोनों को बेतकल्लुफी पर हैरान रह गई। कैसी हो जोनी? वो उससे अलग होते हुए बोला, एकदम फिट। तुम सुनाओ, पाकिस्तान कब आए? वो मुस्कुराकर बोली, कुछ ही दिन हुए हैं। मीट माई फियांसी जमल। वो जमल को जानिब इशारा करते बोला, ओह शी इज सो प्रिटी। वो एक अदा से बोली, आओ हमें ज्वाइन कर लो, मिलकर डिनर करते हैं। वो जुनी को ऑफर देते बोला, नहीं हनी, फिर कभी, अभी मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हूँ। वो रहा। वो दूर खड़े लड़के की जानिब इशारा करते बोली, जो दिखने में ही जमल को लोफर लगा। ओके, एंजॉय योर डे, जैन ने कहा और वो दोबारा उसके गले लगते मुस्कुराते हुए चली गई। ये मेरी फ्रेंड है जुनाइशा, हम न्यूयॉर्क में एक साथ पढ़ते थे। वो जमल को बताने लगा, ये तुम्हारी कैसी लड़कियों के साथ दोस्ती है जैन? इतनी बेशरम लड़की अपने मुंह से बता रही है कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हूँ और तुम्हारे साथ भी चिपक रही है। तुम बहुत बुरे हो जैन, आई हेट यू। वो बहुत दुखी होकर बोली, अब ऐसा भी क्या हो गया है जमल? वो अच्छी लड़की है और दोस्तों में हक करना आम बात है। वो नॉर्मल अंदाज में बोला, मुझे घर जाना है जैन। वो पर्स पकड़े उठ खड़ी हुई। इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो ऑर्डर भी नहीं आया। वो हैरान हुआ, तुमने सुना नहीं? मुझे घर जाना है। वो घर पर जोर देकर बोली और चल पड़ी। तो जैन भी मजबूरन उठ खड़ा और उसके पीछे चल दिया। वो सारे रास्ते खामोश रही। जैन ने समझाया भी कि ऐसी क्या बात हो गई, पर वो खामोश रही, कुछ नहीं बोली। घर आते ही वो सीधी अपने कमरे में चली आई। न जाने उसे क्यों बहुत रोना आ रहा था। जैन बहुत बदल गया था। बचपन से जिस एक शख्स से उसने मोहब्बत की थी वो बहुत बदल गया था। जमल को उसके ख्यालात बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। वो रंगीनियों में जीने वाला शख्स था। अब पहले जैसा जैन बिल्कुल नहीं रहा था, जिससे वो दिल की हर बात कर लेती थी। वो दोनों दो अलग दुनियाओं में रहने वाले इंसान बन गए थे। ना जाने अब उसके साथ जिंदगी कैसे कटेगी। वो दोनों लॉन में बैठी थी जब दाइम ने गाड़ी पोर्च में पार्क की। वो फरहाद से मिलने आया था। वो पहले भी यहाँ फरहाद से मिलने आता था, पर आज काफ़ी सालों बाद आते हुए अजीब लग रहा था। वो गाड़ी से उतरा तो सामने लॉन में दो लड़कियां बैठी थीं। वो चलता हुआ उन तक आया। एक्सक्यूज़ मी, वो ग्लासेस उतारते हुए बोला तो अबीरा और नूर मुतवज्जो हुई। जी, अबीरा बोली। अरे दाइम भाई आप? नूर और अबीरा उसे इतने अरसे बाद देखकर बोली। जी, कैसी हो आप दोनों? वो मुस्कुराकर बोला। नूर को देखकर उसने एक हार्टबीट मिस की थी। वो पहले से काफ़ी बड़ी और प्यारी हो गई थी। हम एकदम ठीक, आप कैसे हैं? नूर ने मुस्कुराकर पूछा। ठीक हूँ। फरहाद अंदर है? दाइम ने पूछा। जी, वो अपने रूम में है, आप मिलने? अबीरा ने कहा तो वो मुस्कुराता हुआ अंदर चला आया। फरहाद लाउंज में ही बैठा था। उसे देखकर उठ खड़ा हुआ। मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, आ जाओ ऊपर मेरे रूम में चलें। वो दोनों ऊपर जाने लगी तो जमल सीढ़ियों से उतर रही थी। उसे देखते ही सलाम किया। कैसे हैं दाइम भाई? वो खुश दिली से बोली थी। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वो एहतराम से बोला। मैं भी ठीक। वो मुस्कुराई। जमल, क्या तुम हमें कॉफ़ी बना दोगी? फरहाद ने जमल से पूछा। श्योर, क्यों नहीं, मैं अभी लाती हूँ, जमल ने कहा और आगे बढ़ गई। तो वो दोनों भी कमरे में आ गए। फरहाद अपने ऑफिस में रूम में बैठा एक फाइल देख रहा था जब किसी एहसास के तहत उसने सामने देखा तो हैरान रह गया। जमल हाथ में लंच बॉक्स लिए मुस्कुराती हुई दरवाजे में खड़ी थी। मे आई कम इन सर? वो शरारत से बोली। रेड ड्रेस में वो कोई खिला हुआ गुलाब लग रही थी। यस, बट तुम्हें किसकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं, वो भी मुस्कुराते हुए बोला। उसे देखते ही तबीयत खुश हो गई थी। जमल मुस्कुराते हुए अंदर आई और उसके सामने कुर्सी पर बैठ गई। लंच बॉक्स टेबल पर रख दिया। तुम यहाँ कैसे, खैरियत? वो थोड़ा हैरान हुआ। मैं पहले भी कभी कभी अहमद मामू को लंच बना कर लाती हूँ ऑफिस पर। मामी ने कहा कि आपके लिए भी ले जाऊं क्योंकि आप सुबह नाश्ता करके नहीं आए। वो लंच बॉक्स खोलते हुए उसके सामने रखकर बोली। पापा ने खा लिया क्या? फरहाद को उसका फिक्र करना अच्छा लगा था। मामू ने कहा फरहाद के पास ले जाओ, मैं आ रहा हूँ। ले आ गए मामू भी। वो अहमद साहब को देखकर बोली, भाई मेरी बेटी को मेरी सेहत की बहुत बहुत फिक्र रहती है, तभी इतनी मेहनत से खाना बना के लाई है। अहमद साहब कुर्सी पर बैठते हुए बोले तो जमल ने मुस्कुराकर खाना प्लेट्स में निकाला और दोनों के आगे रखा। जैन कहाँ है? उसे भी बुला लें, फरहाद ने कहा। वो नवाब साहब घंटा पहले ही निकल चुका है।
احمد نے کہا زین کا آفس اور کام کے ساتھ نان سیریس بیہیو مجھے بالکل پسند نہیں۔ فرحات کو برا لگا، جبکہ برا تو زمل کو بھی لگا۔ وہ آج کل ویسے بھی زین کی ہر بات بہت نوٹس کرتی تھی۔ اس میں آئی تبدیلیاں، غرض ہر چیز۔ ماموں علینا آپی کی شادی میں 2 دن رہ گئے ہیں، اب آپ لوگ آفس سے کچھ دن چھٹی کریں۔ زمل نے احمد صاحب سے کہا ارے نہیں بیٹا، ابھی بہت کام ہے۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے بولے تم فکر نہیں کرو زمل، ہم سارے فنکشنز اٹینڈ کریں گے۔ فرحات نے کہا مطلب آپ لوگ آفس سے چھٹی نہیں کریں گے؟ وہ حیرانگی سے بولی میرے باس بہت سخت ہیں، اگر تم مجھے ان سے چھٹی لے دو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ بیچارگی سے بولا تو وہ ہنس پڑی۔ ماموں فرحات بھائی کو چھٹی دے دیں اور خود بھی آف کریں۔ وہ مشورہ دیتے بولی تھی اوکے زمل، تمہارے کہنے پر میں فرحات کو چھٹی دے رہا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں اپنے روم میں جا رہا ہوں، بہت کام ہے۔ ماموں آپ نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا، اور کھائیں۔ ان کے اٹھنے پر زمل بولی بس بیٹا پیٹ بھر گیا، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ وہ اس کے سر پر پیار کرتے محبت سے بولے اور چلے گئے۔ تھینک یو زمل، کھانا بہت ٹیسٹی تھا۔ فرحات پانی پیتے ہوئے بولا ویلکم۔ اس نے لنچ باکس واپس بند کیا اور شاپر میں ڈالنے لگی۔ اب میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی اور چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی آفس روم میں ایک دم سے اداسی چھا گئی۔ فرحات کو لگا جیسے وہ خاموشی سے اس کا سکون بھی ساتھ ہی لے گئی ہو۔ وہ اس یک طرفہ جذبے سے بچنا چاہتا تھا، بہت کوشش کے باوجود بھی وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ محبت کی کومپل جو اس کے دل میں کھل چکی تھی اب ایک تن آور درخت بنتی جا رہی تھی جس سے رہائی ناممکن تھی۔ سب کزنز بہت خوش تھے۔ آج علینا کی مہندی تھی اور فنکشن نفیس صاحب کے گھر کے لان میں رکھا گیا تھا۔ مہندی کے پیلے جوڑے میں پھولوں کے زیور سے سجی علینا بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے ارد گرد میرون اور وائٹ کنٹراسٹ کے لہنگوں میں ملبوس عبیرہ، نور، سبرینا اور زمل بیٹھی تھیں۔ وہ سبھی بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ سب نے ایک جیسا سیم ڈریس پہن رکھا تھا، البتہ زمل پر وہ رنگ بہت کھلا کھلا لگ رہا تھا۔ فرحات کی نظر اس پر پڑی تو پلٹنا بھول گئی۔ زمل بہت پیاری لگ رہی تھی پر وہ جلدی سے نظریں پھیر گیا۔ اب علینا کی رسم ہونا تھی۔ لڑکیاں وہاں سے ہٹ گئیں اور اب خواتین اس کی رسم کر رہی تھیں۔ زمل نے ارد گرد نگاہ دوڑائی اور زین کو تلاشا پر وہ کہیں نظر نہیں آیا، تو وہ خاموشی سے فاطمہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ تمہارا کیوں چہرہ لٹکا ہوا ہے؟ فاطمہ نے اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، 2 دن بعد میرا پیپر ہے، اسی کی ٹینشن ہے۔ وہ پریشانی سے بولی۔ کچھ نہیں ہوتا، میری بیٹی کے پیپرز بہت اچھے ہوں گے۔ وہ محبت سے بولی ماما آج مجھے پاپا کی بہت یاد آ رہی ہے، وہ بھی ساتھ ہوتے ہوئے تو کتنا مزہ آتا۔ وہ اداسی سے بولی ہاں بیٹا، پر جو اللہ کو منظور۔ وہ افسردگی سے بولی بس تمہارے ایگزامس ہو جائیں، پھر اپنی بیٹی کی بھی ایسے ہی دھوم دھام سے شادی کروں گی۔ فاطمہ علینا کی جانب دیکھتے ہوئے بولی پر آج اس بات پر زمل کو خوشی نہیں ہوئی جیسے پہلے ہوتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں زین بھی آ گیا، پر وہ اکیلا نہیں آیا تھا، اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی، وہی جو اس دن مال میں ملی تھی۔ زمل کو وہ لڑکی بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ زین ناہی سے اسے ملوا رہا تھا، وہ بھی مسکرا کر اس سے مل رہی تھی۔ زمل کو مزید غصہ آنے لگا۔ وہ اٹھ کر علینا کے پاس آ گئی اور ان دونوں کو مکمل اگنور کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھی اور اپنے گھر کی طرف آ گئی۔ دونوں گھر ساتھ جڑے تھے، بیچ میں درمیانی دروازہ تھا۔ وہ وہیں سے چلتی اپنے گھر کے لاؤنج میں آ گئی، پر لاؤنج کا منظر دیکھ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ زین اور زونی ایک دوسرے کے بے حد قریب کھڑے تھے۔ زونی نے اپنے زین کے کندھوں کے گرد لپیٹ رکھے تھے بازو۔ زمل نے نفرت سے وہ منظر دیکھا اور پلٹ گئی۔ زین اور زونی نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے گھر کی بیک سائڈ لان میں آ گئی کیونکہ اس وقت اسے تنہائی چاہیے تھی جو یہی ممکن تھی۔ وہ زور زور سے رونے لگی اور وہاں رکھی ایک چیئر پر بیٹھ گئی۔ آنسو متواتر جاری تھے۔ اسے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا، زین کی بے وفائی پہ رونا آ رہا تھا۔ نہ جانے کتنے پل سر کے اسے پتہ نہ چلا جب کوئی بہت دھیرے سے اس کے سامنے رکھی کرسی پر آ بیٹھا۔ اس نے چونک کر دیکھا تو فرحات فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا زمل، کیوں رو رہی ہو؟ وہ کافی فکر مندی سے بولا۔ کچھ نہیں فرحات بھائی۔ اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے سیدھی ہو بیٹھی۔ اگر کچھ بھی نہیں ہوا تو اس وقت جب ساری لڑکیاں فنکشن میں مصروف ہیں تو تم یہاں اکیلی بیٹھی رو کیوں رہی ہو؟ وہ بہت گمبھیر آواز میں بولا۔ وہ زین، وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ زمل بے اختیار بول گئی۔ میں زین کی نیچر جانتا ہوں، وہ بہت لاپرواہ ہے، تھوڑا فلرٹی بھی ہے، پر محبت وہ تم سے ہی کرتا ہے، فکر نہیں کرو۔ فرحات نے بہت نرمی سے اسے سمجھایا۔ نہیں فرحات بھائی، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ رونے سے اس کا مسکارا تھوڑا خراب ہو گیا تھا۔ وہ تم سے ہی محبت کرتا ہے اور تم دونوں کی تو شادی بھی ہونے والی ہے، پھر کس بات کی ٹینشن؟ وہ تھوڑا افسردگی سے بولا تو زمل کچھ نہیں بولی، بس سمجھ کر سر ہلا دیا۔ اس پر سامنے بیٹھی لڑکی اسے دل و جان سے عزیز تھی، پر قسمت میں نہیں تھی، اور جس کی قسمت میں تھی وہ بے نیاز سا اپنی مستی میں گم تھا۔ چلو پھر اٹھو شاباش اور چل کر مہندی نائٹ انجوائے کرو، فرحات نے بہت نرمی سے کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور جانے لگی تو اچانک اس کا دوپٹہ فرحات کی گھڑی میں اٹک گیا۔ سوری، وہ شرمندہ ہی اور اس ساتھ ہی دوپٹہ اس کی گھڑی سے آزاد کروانا چاہا، پر وہ الجھ گیا تھا، تو فرحات نے اس کا ہاتھ نرمی سے پیچھے کیا اور دوپٹہ گھڑی سے نکالا۔ وہ ممنون نظروں سے اسے دیکھتے پلٹ گئی اور وہ وہیں بیٹھ گیا۔
وہ یہاں فون کال سننے آیا تھا پر سمل کو یہاں روتے دیکھ پریشان ہو گیا تھا۔ وہ زین کی اچھے سے خبر لے گا، آخر اسے بن مانگے محبت مل رہی تھی اور وہ تھا کہ قدر ہی نہیں کر رہا تھا۔ مہندی کا فنکشن بہت اچھے سے گزر گیا تھا، اسے دوبارہ زین نظر نہیں آیا تھا اور نہ ہی اس نے اسے دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ آج بارات تھی اور سب کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ زمل آپ ہی جلدی تیار ہو لیں، ماما کب سے بول رہی ہیں ہال کے لیے، لیٹ ہو جائیں گے۔ نور تیسری دفعہ اس کے کمرے میں آ گئی تھی پر زمل کی تیاریاں ختم ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ بس 2 منٹ نور، زمل نے کہا اور جلدی جلدی سینڈل پہننے لگی۔ بلو اور سلور کنٹراسٹ کے لہنگے میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ شہد رنگ بال اوپر سے سیدھے اور نیچے آ کر موٹے موٹے کرل کیے ہوئے تھے۔ جب وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو زین کو سامنے دیکھ کر خاصی بدمزہ ہوئی۔ صرف نور اور ابیرہ ہی رہ گئے تھے، باقی سب نکل چکے تھے۔ ماما نے کہا ہم سب زین بھائی کے ساتھ آئیں گی، ابیرہ نے بتایا تو وہ غصے سے منہ پھلاتی کار کا دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر آ بیٹھی۔ ابیرہ آگے بیٹھی جبکہ نور پیچھے آ گئی تو زین نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ میرج ہال 10 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ زین نے گاڑی ہال کے آگے روکی، نور اور ابیرہ جلدی سے اتر کر اندر کو بھاگیں۔ زمل نے غصے سے انہیں گھورا اور گاڑی سے اتر آئی۔ وہ اندر جانے ہی لگی جب زین نے اس کا بازو تھام کر روک لیا۔ کس بات پر ناراض ہو سویٹ ہارٹ؟ وہ اس کا رخ اپنی جانب موڑتے ہوئے بولا تو زمل نے اس کے ہاتھ غصے سے جھٹکے۔ دور رہو مجھ سے، وہ نفرت سے بولی۔ ایسا بھی کیا ہو گیا زمل؟ ایسے بیہیو کیوں کر رہی ہو؟ وہ حیران ہوا۔ کل زنی سے جس طرح چپک کر کھڑے تھے میں نے سب دیکھ لیا تھا، آئندہ مجھ سے بات مت کرنا، میں تمہاری کچھ نہیں لگتی۔ وہ انگلی اٹھا کر غصے سے اسے وارن کرتے ہوئے بولی تو زین نے اس کی انگلی تھام کر اپنے لبوں سے لگائی۔ اس کی اس حرکت پر زمل کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا پر زین ڈٹائی سے کھڑا رہا۔ میرا ہاتھ چھوڑو، وہ غصے سے بولی پر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ زین یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ زمل کا ہاتھ چھوڑو۔ تبھی فرحاد وہاں آیا اور غصے سے بولا، دائم بھی اس کے ساتھ تھا۔ بھائی یہ میرا اور زمل کا پرسنل میٹر ہے، پلیز آپ ہمیں بات کرنے دیں۔ زین زمل کی جانب دیکھ کر بولا اور اس نے ابھی تک زمل کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ زین تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، چھوڑو اس کا ہاتھ۔ فرحاد نے غصے سے زمل کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا۔ زمل تم اندر جاؤ، ساتھ ہی زمل سے بولا تو وہ نم آنکھوں سے زین کو گھورتی اندر چلی گئی۔ یہ کیا طریقہ ہے تم راستے میں کھڑے آوارہ لڑکوں کی طرح اپنی کزن کو ٹریٹ کرو گے؟ فرحاد غصے سے اس پر برس پڑا۔ صرف کزن نہیں، فیانسی بھی۔ زین لاپرواہی سے بولا، اور کیا یار بھائی آپ تو سیریس ہی ہو گئے، وہ مجھ سے کسی بات پر ناراض تھی، میں بس اسے منا رہا تھا۔ اسے منانا نہیں بدتمیزی کرنا کہتے ہیں، اور آئندہ میں تمہیں زمل سے بدتمیزی کرتے ہوئے نہ دیکھوں۔ فرحاد انگلی اٹھاتے اسے فون کرتے ہوئے بولا، چلو یار اندر چلیں، تمہاری کزن کی شادی ہے اور تم لوگ یہاں کھڑے لڑ رہے ہو۔ دائم نے دونوں سے کہا چلو، فرحاد نے بولا تو وہ دونوں اندر چلے گئے۔ علینا اور زبیر اس وقت بہت پیارے لگ رہے تھے، سب ان کی جوڑی کو سرا رہے تھے۔ دلہا دلہن کے گرد سب کزنز کا جھکمٹا لگا ہوا تھا پر وہ سٹیج پر نہیں گئی تھی۔ سائڈ پر بنی ایک ٹیبل پر اجنبی کی طرح بیٹھی تھی، اصولاً ابھی اسے بھی سٹیج پر ہونا چاہیے تھا۔ زمل کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ نائم کی آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ جی نائم بھائی بیٹھ جائیں۔ زمل نے حیرانگی سے کہا، اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہوں؟ وہ نرمی سے بولا، جی کہیں۔ زمل متوجہ ہوئی۔ کیا آپ زین سے محبت کرتی ہیں؟ وہ اس کے چہرے پر کچھ کھوجتے ہوئے بولا، یہ کیسا سوال ہے؟ اگر آپ باہر ہوئی میری اور زین کی لڑائی دیکھ کر یہ پوچھ رہے ہیں تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ میں جواب دوں۔ وہ سنجیدہ ہوتے بولی، میں جسٹ ایک بات پوچھ رہا ہوں، ڈونٹ مائنڈ پلیز، کیا آپ واقعی زین سے محبت کرتی ہیں؟ وہ نرمی سے بولا، جی کرتی ہوں، پر اس سے آگے وہ کچھ نہیں بولی، بس الجھ گئی۔ اگر کبھی آپ کی لائف میں کبھی زین سے اچھا انسان آ جائے جو آپ سے بہت محبت کرے تو کیا آپ اس کا ہاتھ تھام لیں گی؟ دائم کی بات سن کر زمل نے حیرانگی سے اسے دیکھا، ارد گرد شادی کا شور سننا بند ہو گیا۔ آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ تعجب سے بولی، کچھ نہیں، اس سے مزید کہا تو آپ ناراض ہو جائیں گی اور میں اتنی پیاری بہن کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ اس گفتگو کو پھر کبھی جاری کریں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ گیا۔ تبھی فرحاد وہاں آیا تو دائم مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ کیا ہوا زمل، آر یو اوکے؟ فرحاد فکر مندی سے بولا، جی۔ زمل نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ دائم کی جانب بڑھ گیا۔ زمل دائم کی بات پر حیران ہی آخر وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ وہ سر جھٹکتی اٹھ کھڑی ہوئی اور سٹیج کی جانب بڑھ گئی۔ نائس ڈریس۔ نور وائٹ فراک میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ موبائل میں دلہا دلہن کی پکچرز لے رہی تھی جب نائم اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ تھینکس دائم بھائی، نور نے مسکرا کر کہا۔ ویلکم، آپ مجھے صرف دائم بھی کہہ سکتی ہیں، میں ہرگز مائنڈ نہیں کروں گا۔ وہ مسکرا کر بولا تو نور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اف، کیا مطلب؟ آپ مجھ سے بڑے ہیں، بھلا میں آپ کو دائم کیوں کہوں؟ وہ حیرانگی سے بولی، سمپل، تاکہ بعد میں آپ کو میرا نام لینے میں مشکل پیش نہ آئے۔ وہ بہت آسانی سے دل کی بات کہہ گیا تھا پر نور کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی جبکہ دائم کا آخری جملہ فرحاد سن چکا تھا۔ نور یہاں پکچرز اچھی نہیں آ رہی، اسٹیج پر جا کر لو، فرحاد نے نور سے کہا تو وہ سر ہلاتے چلی گئی تو فرحاد اس کی جانب مڑا۔ یہ کیا باتیں کر رہے ہو میری بہن سے؟ وہ اسے گھر کر بولا، سمپل، مجھے آپ کی بہن پسند ہے اور میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ دل کی بات بتاتے ہوئے بولا۔ کیا؟ ایک پل کو تو فرحاد حیران ہوا۔ ٹھیک ہے تو تمہیں اس کے لیے پراپر رشتہ لانا ہوگا، یہ فلرٹ ہرگز برداشت نہیں کروں گا میں۔ وہ خالصتاً بھائی بن کر بولا تو دائم مسکرایا، جو حکم صالح صاحب۔
वो सर को हम देकर बोला तो फरहाद ने उसे घूरा। जैन थोड़ी ही देर फंक्शन में रहा और चला गया। अबीरा, एक बात बताओ तुम्हें। बारात से वापसी पर वो थक गई थी और अब सोने की तैयारी कर रही थी। अबीरा की आंखें नींद से बोझल हो रही थीं जब नूर ने उसे पुकारा। वो दोनों इकट्ठे एक रूम में सोती थी जबकि जमल अलग रूम में सोती थी। हाँ बताओ, वो नींद से बोझल आवाज में बोली। दाइम भाई ने मुझसे कहा कि मैंने सिर्फ दाइम कहा करूं, भाई नहीं। नूर ने अबीरा को बताया तो अबीरा ने एक झटके से आंखें खोली। हैं, सच्ची? मगर वो क्यों? अबीरा को बात समझ आ गई थी। पता नहीं आगे से कहते ताकि बाद में आपको मेरा नाम लेने में मुश्किल ना हो। नूर को थोड़ी बहुत बात समझ आई थी पर वो अबीरा से बात करके तस्दीक चाहती थी। ओहो, इसका मतलब है कि वो तुम्हें अपनी मिसेस बनाना चाहते हैं। अबीरा सीटी बजाकर बोली तो नूर उसकी इतनी साफ गोई पर दंग रह गई। शायद वो मुझे अपनी फ्रेंड बनाना चाहते हो और तुम क्या बकवास कर रही हो, वो बुरा मानते हुए बोली। अरे पागल, वो तुम्हें लाइक करते हैं, मैंने इन्हें देखा है। तुम्हें मोहब्बत से देख रहे थे, शक तो हुआ था पर मुझे लगा कहाँ बोंगी नूर और कहाँ इतने हैंडसम ताइम भाई। वो शरारत से बोली तो नूर को उसे बोंगी कहने पर गुस्सा आया। मैं तुम्हें बोंगी लगती हूँ? वो सदमे से बोली। अरे नहीं पागल, तुम तो बहुत प्यारी हो, क्यूट सी, तभी तो दाइम भाई तुम पर मर मिटे। वो नूर के गाल पर चुटकी काटते हुए बोली। उफ, ये ऐसी बातें कर रही हो। नूर ने दोनों हाथ चेहरे पर रख लिए। अब शर्माओ तो नहीं? अबीरा उसकी हालत पर हंसकर बोली। अच्छा चलो अब सो जाएं, कल अलीना आपी का वलीमा है। नूर लहजा हमवार करते हुए संजीदगी से बोली और बिस्तर में घुस गई। आंखें बंद ही की थी, दाइम की बात सोचकर दिल मुस्कुरा उठा। अलीना की रुखसती बहुत अच्छे से हो गई थी। आज उसका वलीमा था और कल जमल का पहला पेपर था। वो बहुत परेशान थी पर फंक्शन भी इंजॉय करना था। वो पूरा दिल से तैयार हो रही थी। मैरून लॉन्ग फ्रॉक में वो बहुत प्यारी लग रही थी। हाथों में हमरंग चूड़ियां थीं जो नरमो नाजुक हाथों की खूबसूरती को मजीद बढ़ा रही थीं। उसने अपने हाथों को देखा और तलाशना चाहा, साथ ही जैन के मुतल्लिक सोचा था पर गुस्से के सिवा उसे कोई जज्बा महसूस ना हुआ। आखिर वो खुद को समझता क्या है? एक तो उसने सुनाइशा से ताल्लुक बनाया है, जमल को धोखा दिया। वो जैन से सख्त बेजार हो गई थी। जमल वो आईने में अपना अक्स देख रही थी जब जैन ने उसे पुकारा तो वो गुस्से से पलटी। तुम मेरे कमरे में क्यों आए हो? क्यों नहीं आ सकता क्या? उसने उल्टा सवाल किया। बिल्कुल नहीं, वो गुस्से से बोली। होने वाला शौहर हूं तुम्हारा, ऐसे बात करोगी मुझसे? वो उसकी चूड़ियों वाली कलाई पकड़कर बोला तो जमल ने उसका हाथ झटका। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, ना ही मुझे तुमसे शादी करनी है। तुमने मुझे धोखा दिया है। ना चाहते हुए भी जमल की आंखों से आंसू आ गए। कैसी बातें कर रही हो स्वीट हार्ट, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। जूनी बस अच्छी दोस्त है, तुम्हारे थोड़ी बहुत फ्रेंकनेस है हमारी, पर मोहब्बत तुमसे ही है। वो जमल के गाल पर हाथ रखकर बोला तो जमल ने उसका हाथ पीछे किया। झूठ मत बोलो, मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें उसके साथ। वो जोर देकर बोली। तो जब तुम मुझे खुद से दूर करोगी तो मैं कहीं तो मोहब्बत ढूंढूंगा ना। वो हंसते हुए बोला तो जमल को उसकी बात मजीद तपा गई। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, जाओ यहाँ से। वो चीख कर बोली तो जैन वहीं खड़ा रहा। जमल, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ यार, किस तरह यकीन दिलाऊं तुम्हें? वो उकता कर बोला। जमल, आप ही चले, सब वेट कर रहे हैं। तभी अबीरा अंदर आई तो जमल उसे घुरती बाहर निकल गई। जैन भी लाउंज में सब उसके मुंतजिर थे। अलीना के वलीमे पर सब थे सवाए फरहाद के। उसकी कोई ज़रूरी मीटिंग आ गई सो वो नहीं आया था। वलीमे का फंक्शन 6 बजे शुरू हुआ था। वो 9 बजे फ्री हो गए थे। वापसी पर वो लोग घर जा रहे थे जब अहमद साहब के किसी अजीज़ के यहाँ डेथ हो गई थी, सो उन्हें नाहिद और फातिमा को जाना पड़ा। घर आकर वो लोग इस्लामाबाद फौतगी के लिए निकल गए। पीछे बच्चे रह गए थे, वैसे भी उन्होंने कल तक वापस आ जाना था। जमल का कल पेपर था। वो सारी रात जाकर तैयारी करना चाहती थी। अबीरा और नूर तो सोने चली गई। जैन अपने कमरे में था जबकि फरहाद अभी तक नहीं आया था। मौसम भी खराब लग रहा था। आसमां पर सुरमई बादल छाए थे। जमल को ना जाने खौफ सा महसूस हुआ। उसने अपने लिए कॉफ़ी बनाई, कमरे में आकर किताब उठाई और पढ़ने लग गई। ना जाने कितनी देर वो पढ़ती रही। नींद भी आ रही थी पर अभी तैयारी मुकम्मल नहीं हुई थी। घर में बड़े भी नहीं थे। उसे अजीब अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो रहा था। हालांकि वो लोग पहले भी ज़रूरी काम से जाते थे पर आज जमल को अजीब सा महसूस हो रहा था। रात अभी ज़्यादा गहरी नहीं हुई थी। 12 बजने वाले थे। फरहाद भी अभी तक नहीं आया था। उसने किताब एक तरफ रखी और कपड़े चेंज करने का सोचा। वो अभी तक उसी शादी वाले ड्रेस में थी। वो उठकर आईने के सामने आई और अपना अक्स देखा। मेकअप अभी तक फ्रेश था। वो मुस्कुराई। जैसे ही पलटी तो अपने बिल्कुल पीछे खड़े जैन को देखकर दंग रह गई। वो सुर्खोती आंखों से जमल को ही देख रहा था। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो जैन? जमल ने गुस्से से पूछा। तुम्हारे अल्फाज मुझे सुकून नहीं लेने दे रहे। जब तक तुम नाराज रहोगी मैं बेचैन रहूंगा। वो उसे कंधों से थामते बोला। मुझे इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करनी, अपने कमरे में जाओ। उसे जैन अजनबी सा लगा था पर मुझे अभी ही बात करनी है। जमल को उसके पास से शराब की स्मेल आई। जैन, यू आर ड्रिंक? वो हैरानगी से बोली। छोड़ो ये बातें, बस मुझसे नाराज मत हुआ करो। वो उसे कमर से थाम कर खुद से करीब करते हुए बोला। जैन, ये क्या कर रहे हो? पीछे हटो। वो उसे खुद से दूर करते हुए बोली। हर बार एक ही बात, मैं नहीं रह सकता तुमसे दूर। वो मजीद जमल के करीब हुआ तो जमल ने जोर लगाकर उसे पीछे को धक्का दिया। मुझसे दूर रहो घटिया इंसान, तुम मेरी मोहब्बत के काबिल ही नहीं। तुम शराब पीने भी लग गए और कोई गलत काम रह गया है? वो दुख और अफसोस से बोली।
तुम मुझे खुद से दूर नहीं कर सकती, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो फिर जमल के करीब आया। जमल को उससे अजीब वहशत हुई। उसने जमल को थाम कर खुद से करीब करना चाहा तो जमल ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। दूर रहो मुझसे, निकलो मेरे कमरे से, वो चीख कर बोली थी। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाउ डे यू? वो गुस्से से आगे बढ़ा। जमल को एक पल उससे खौफ आया। वो उसकी आंखों से टपकती वहशत देखकर सहम गई और दरवाजे की जानिब भागने लगी तो जैन दरवाजे के आगे आ गया और दरवाजा लॉक किया और जमल की जानिब लपका जिसके रंग उड़ चुके थे। जैन ने उसकी जानिब कदम बढ़ाए। वो पीछे हटती के जैन ने उसे बेड पर धक्का दिया और वो डर कर फौरन उठी। ये तुम क्या कर रहे हो जैन? वो बहुत खौफजदा होकर बोली थी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, पर तुमने ये थप्पड़ मारकर अच्छा नहीं किया स्वीटहार्ट, सो इसकी सजा तो बनती है। वो जमल का बाजू खींच कर बोला तो वो उसके सीने से आ टकराई। प्लीज तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जैन, मैं जमल हूँ, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तुम मुझे रुस्वा नहीं करोगे, प्लीज जैन। वो उसे खुद से दूर करते मिन्नत करके बोली, पर उस पर शायद शैतान गालिब था और ये जमल की जिंदगी का सबसे बदतरीन लम्हा था। प्लीज दूर रहो मुझसे, वो उसे धक्का देकर बोली। पर अगले ही लम्हे जैन ने उसे बेड पर धक्का दिया। जमल ने जैन की सूरत अपनी मौत को करीब आते देखा था। बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी, बादल भी गरज रहे थे, बस बारिश शुरू होने ही वाली थी। यूं लगता था इस तूफानी रात में कयामत बीत गई हो, जैसे एक नाजुक फूल अपनी खुशबू से महरूम हो गया हो। जैन अपनी दरिंदगी दिखाकर जा चुका था। जमल अपने कमरे में जमीन पर बैठी अपने हाथों को देख रही थी जिस पर टूटी हुई चूड़ियों के निशान थे। उसे लगा जैसे कयामत आकर चली भी गई और वो अब तक जिंदा थी। क्यों थी वो जिंदा? वो किस्मत की इस सतम जरीफी पर मर जाना चाहती थी। बाहर जोरों से बारिश शुरू हो चुकी थी। एकदम वो उठी, लॉन से गुजरती भागते हुए लॉन में आ गई जहाँ तेज बारिश बरस रही थी और वो आसमां को देखकर चीख चीख कर रोने लगी। ये उसके साथ क्या हो गया था? वो इस रुसवाई पर मर जाना चाहती थी। वो हलक के बल चिल्ला रही थी, रो रही थी, पर उसकी चीखों पुकार से बेखबर अबीरा और नूर सो रही थीं। रोते रोते जब वो थक गई वहीं लॉन में बैठ गई और सर घुटनों पर टिका दिया। बारिश हनुस जारी थी। बारिश की रफ्तार अब कुछ कम हो गई थी। जब वो घर पहुंचा तो गाड़ी पोर्च में रुकी। वो चलता हुआ लॉन की जानिब आया कि अचानक उसकी नजर लॉन के बीचों बीच सर घुटनों में दिए बैठी जमल पर पड़ी तो वो उसे देखकर ठटक गया। जमल, फरहाद ने धीरे से उसे पुकारा तो जमल ने सर उठाकर अजनबी नजरों से उसे देखा। वो पूरी बारिश में भीगी हुई थी। उसकी उलझी बिखरी हालत देख बेतरतीब हो लिया और सबसे बढ़कर आंखों में छाया हुज़्न। वो एकदम परेशान हो गया। जमल, क्या हुआ? यहाँ क्यों बैठी हो? उसने नरमी से पूछा। वो बहुत डिस्टर्ब हो गया था। दिल में अजीब अजीब से वहम आ रहे थे। जमल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोश खाली खाली नजरों से उसे देखने लगी। जमल, कुछ तो बोलो, क्या हुआ है? क्या जैन ने कुछ कहा है? प्लीज कुछ तो बोलो, फरहाद बेबसी से बोला। वो भी बारिश में भीग रहा था। जमल ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो उसने उसका हाथ थामकर खड़ा करना चाहा। वो बेजान वजूद से खड़ी हुई और रोने लग गई। फरहाद उसके रोने पर परेशान हो रहा था। जमल, क्या हुआ? भीगती बारिश में अपनी मोहब्बत को भीगती आंखों से देखना बहुत करबनाक था। जमल ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो बेजान होकर गिरने ही लगी थी कि फरहाद ने उसका सर अपने सीने पर रखकर जमल की आंखों के गिर्द छाए अंधेरे के बाइस बेहोश हो गई। फरहाद ने उसे अपने मजबूत बाजुओं में संभाला। वो हद से ज्यादा परेशान हो गया था। उसने जमल के ठंडे से कांपते वजूद को उठाया और अंदर आ गया। जमल को उसके रूम में लेटाया, उस पर कंबल डाला, रूम हीटर ऑन किया और जैन के रूम में आया ताकि उससे पूछ सके कि जमल को क्या हुआ। पर वो अपने कमरे में नहीं था। वो गुस्से से वापस जमल के कमरे में आया। जमल का चेहरा किसी भी जज्बे से आरी था। वो बेहिस सी पड़ी थी। फरहाद को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। अजीब से वसवसे उसके दिल में आ रहे थे जिन्हें वो नजरअंदाज कर गया। उसने अबीरा और नूर के कमरे का दरवाजा खटखटाया। नूर नींद की पक्की थी। वो जानता था वो नहीं उठेगी, पर अबीरा हल्की सी दस्तक पर उठ गई। क्या हुआ भाई? वो आंखें मलती हुई बोली। वो जमल की तबीयत बहुत खराब है, उसके रूम में चलो और उसे मेडिसिन दो, बल्कि यूं करो कि आज उसके रूम में ही सो जाओ। जैन कहाँ है? फरहाद ने उसे कहा। क्या जमल आपी को क्या हुआ? वो फिक्रमंद हुई। पता नहीं, तुम उसके पास जाओ, मैं गर्म दूध लाता हूँ, फरहाद ने कहा और किचन में चला आया। उसने जेब से मोबाइल निकाला और जैन को कॉल मिलाई। हेलो, कहाँ हो जैन? मम्मी पापा घर पर नहीं, और तुम अकेली लड़कियों को छोड़कर कहाँ आवारागर्दी कर रहे हो? वो जैन पर बरस पड़ा। मुझे कुछ काम था भाई, जमल की तबीयत ठीक नहीं है, घर आओ। वो गुस्से से बोला। सॉरी भाई, मैं अभी नहीं आ सकता, मुझे जरूरी काम से इस्लामाबाद जाना है और मैं निकल चुका हूँ, प्लीज आप उसका ख्याल रखना, वो बस मुझसे थोड़ा नाराज है, जैन ने कहा और फोन रख दिया। फरहाद ने गुस्से से मोबाइल को देखा। जैन को तो जमल की कोई परवाह नहीं थी। आखिर ये लड़का इतना लापरवाह क्यों है? वो सारी सोचें झटक कर गर्म दूध लेता जमल के कमरे में आया। अबीरा उसका सर दबा रही थी। ये जमल को मेडिसिन खिला दो। फरहाद ने दूध और दवाई उसकी जानी बढ़ाई तो अबीरा ने उसे सहारा देकर उठाया और जबरदस्ती दवा खिला दी। भाई, जमल आपी के कपड़े भी भीगे हुए हैं, वो तशवीश से बोली। हाँ, जब मैं आया तो जमल बाहर लॉन में थी, फरहाद ने बताया और वहीं सोफे पर बैठ गया। भाई, आप थके हुए लग रहे हैं, आपको भूख लगी होगी, मैं खाना लाती हूँ आपके लिए, अबीरा ये कहते उठकर चली गई। फरहाद ने मोहब्बत और फिक्रमंदी से जमल को देखा। वो इस वक्त बहुत बीमार लग रही थी। वो दिल के बहुत करीब थी, पर हकीकत में इतनी ही दूर थी। काश वो उसकी किस्मत होती तो वो अपनी किस्मत पर रश्क करता। वो यूं ही मोहब्बत और फिक्रमंदी से उसे देख रहा था जब अबीरा उसके लिए खाना ले आई। मुझे भूख नहीं है, फरहाद ने कहा। थोड़ा सा खा ले भाई, अबीरा ने कहा तो फरहाद ने 2-4 लुकमे लिए। मैं जमल के पास हूँ, आप सो जाएं भाई।
अबीरा के कहने पर वो सर हिलाते उठ गया। रात के 3 बज रहे थे। जमल को एक मोहब्बत भरी नजर देखते वो बाहर निकल गया। फरहाद का फोन देखकर एक पल को वो डर गया था, कहीं जमल ने फरहाद को तो नहीं बता दिया, पर उसके पूछने पर वो पुरस्कून हुआ। फरहाद से बात करके उसने फोन रख दिया। इस वक्त वो अपनी गाड़ी में बैठा इस्लामाबाद जा रहा था। उसे कोई काम तो नहीं था, पर वो कुछ दिन घर से दूर रहना चाहता था। वो जानता था उसने जमल के साथ अच्छा नहीं किया, पर वो नफ्स के हाथों मजबूर था और उसकी नज़र में ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि जमल इस बात पर गमगीन होकर बीमार हो जाए। सो वो कुछ दिन घर से दूर रहना चाहता था। वो गहरी नींद में थी और उसका जिस्म बुखार से तप रहा था। अहमद, नाहिद और फातिमा आज वापस आ गए थे। जमल का आज पेपर था, पर वो होशो खर्च से बेगाना थी। फातिमा फिक्रमंदी से उसके सरहाने बैठी थी। उसने हल्की सी आंख खोली तो कुछ समझ नहीं आया, फिर उसे आंखें बंद कर ली। जमल, क्या हुआ मेरी जान? फातिमा ने मोहब्बत से उसके माथे पर बोसा दिया। मामा, वो रोते हुए बोली। क्या वो अपनी रुसवाई के मुतालिक अपनी माँ को बता दे? उसने कर्ब से सोचा। वो चाह कर भी बता नहीं पाई और फिर से आंखें मूंद कर सो गई। वो इसकी जिंदगी से फरार चाहती थी। फरहाद सुबह से 2 बार उसको देखने आया था, पर वो हनूज सोई हुई थी तो वो दरवाजे से ही पलट गया। उसके ऑफिस में मीटिंग थी, वो ऑफिस चला गया और शाम को वापस आया तो वो अब तक सोई हुई थी। वो अपने कमरे में आया और बेड से टीक लगाकर बैठ गया। तभी उसका मोबाइल बजने लगा। दाइम की कॉल थी। उसने रिसीव की। हेलो, कैसे हो फादी? दाइम की खुशगवार आवाज सुनाई दी। ठीक हूँ यार, तुम कैसे हो? वो थका थका सा बोला। फिट हूँ, ये बताओ मेरा काम किया? दाइम ने पूछा। कौन सा काम? फरहाद ने छिपे से पूछा। भूल गए नूर और मेरे मुतालिक बात की अंकल से? वो बेचैनी से बोला। नहीं यार, अभी मैं बहुत परेशान हूँ। जमल की तबीयत बहुत खराब है। वो आंखों पर हाथ मसलते हुए बोला। ओह, क्या हुआ जमल को? उसे बहुत तेज बुखार है। चलो, अल्लाह सेहत दे, ख्याल रखो उसका। मैं कल चक्कर लगाऊंगा। दाइम ने कहा। ओके। फरहाद ने फोन साइड पर रखा और फ्रेश होने चला गया। जमल की तबीयत को लेकर फातिमा बहुत परेशान थी। शाम को फरहाद डॉक्टर को ले आया था। तेज बुखार की वजह से वो नींद में थी। डॉक्टर ने मेडिसिन दी और चला गया। रात को जाने कौन सा पहर था जब जमल की आंख खुली। तबीयत पहले से कुछ बेहतर थी, पर जिस्म बेसुध था। जहन के पर्दे पर जब यादों ने कदम रखा तो वो सही मैनों में होश में आई। एक झटके से वो बिस्तर से उठी। उसे अपने वजूद से घिन आने लगी। वॉशरूम में आकर उसने शॉवर ऑन किया और कपड़ों समेत शॉवर के नीचे खड़ी हो गई। कितनी सातें बीती थीं, वो बिना हिसाब के खड़ी रही। काफी देर बाद वो चेंज करके बाहर निकली और जायनमाज बिछाकर बैठ गई। उसे अपने रब से बहुत शिकवे थे। उसके साथ ये क्या हो गया था? वो काफी सजदे करती रही, काफी देर रोती रही, फिर बिला आखिर थक कर उठी और बेड पर लेट गई। उसकी तबीयत की वजह से आज फातिमा भी उसके कमरे में थी और सो रही थी। जमल ने नम आंखों से माँ को देखा और करवट बदलते रोती रही। वो जमल के लिए बेचैन था। नींद आंखों से कोसों दूर थी। दिल के हाथों मजबूर होता वो जमल को एक नजर देखने उसके कमरे में आया। हल्की सी आहट से दरवाजा खुला तो वो करवट लिए सो रही थी। उसे अंदर आना मुनासिब न लगा तो वहीं से पलट गया। कमरे में आकर वो बेचैनी से करवटें बदलता रहा। काफी देर बाद जाकर उसे नींद आई। कहाँ हो जैन? घर कब आना है? नाहिद जैन से फोन पर बात कर रही थी। मुझे कुछ दिन लगेंगे मॉम, आप टेंशन ना लें, मैं आ जाऊंगा। वो लापरवाही से बोला। अच्छा जल्दी आना, तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता बेटा। तुम्हारी फिक्र भी रहती है, बस अगले माह तुम्हारी शादी की डेट फिक्स कर देनी है। वो फिक्रमंदी से बोली। ठीक है मॉम, जैसे आपकी मर्जी, मैं जरा बिजी हूँ, फिर बात करता हूँ, बाय। जैन ने कॉल काट दी तो नाहिद ने फोन रख दिया और फरहाद के कमरे में चली आई। वो बालकनी में खड़ा काफी पी रहा था। वो वहीं चली आई। मेरा बेटा कितना बड़ा और हैंडसम हो गया है। उसे देखते हुए मोहब्बत से बोली तो वो मुस्कुराकर पलटा। क्या बात है मामा? वो मुस्कुराया। कुछ नहीं, तुम दोनों भाइयों की ही फिक्र रहती है। कैसी फिक्र? फरहाद ने पूछा। जैन की तो मैं अगले माह तक शादी कर दूंगी। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? सबरीना के मुतालिक सोचा? वो फिक्रमंद दिखाई दी। प्लीज मामा, नॉट अगेन। वो बेजार हुआ था। तो तुम्हें सबरीना पसंद नहीं? वो उसके चेहरे पर कुछ खोजते हुए बोली। नहीं, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। अच्छा तो फिर किस में इंटरेस्ट है? जमल में। वो बेख्तियार बोल उठा। क्या? नाहिद बेहद हैरान हुई। मेरा मतलब है जमल ठीक हुई? उसकी तबीयत कैसी है अब? वो जल्दी से बात बदल कर बोला। हाँ, पहले से बेहतर है, अब उसे देख कर आई हूँ अभी। तुम बताओ फरहाद, तुमने क्या फैसला किया है? अगर सबरीना नहीं पसंद तो नूर को पसंद कर लो, वो बहुत अच्छी है। नाहिद ने उससे कहा। उफ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? जैसे मेरे लिए अबीरा है वैसी ही नूर है, और वो कितनी छोटी है मुझसे। उफ मामा, उफ, आप भी क्या क्या सोचती रहती हैं? वो हद दर्जा नाराजगी से बोला। अच्छा अच्छा ठीक है, अब ऐसी भी कोई बात नहीं कर दी मैंने। वो जल्दी से बोली। बल्कि मुझे नूर के बारे में आपसे बात करनी है। मेरा दोस्त है ना दाइम, वो नूर से शादी करना चाहता है। कुछ दिन तक वो अपनी दादी को लाएगा। आप प्लीज पापा और फातिमा फूफो से बात कर लेना। फरहाद ने माँ से कहा। अच्छा तो ये बात है, अब देख लो दाइम भी तो तुम्हारे जितना है, वो नूर से शादी कर सकता है पर तुम नहीं। वो नाराजगी से बोली। प्लीज मामा, अब वो हाथ जोड़ते हुए बोला तो नाहिद मुंह बनाते चली गई। जमल की तबीयत पहले से बेहतर थी। सबके सामने वो खुद को एक्सपोज नहीं कर सकती थी। बड़ी हिम्मत से उसने खुद को संभाला था। फातिमा को वो मुतमईन कर चुकी थी कि वो अब ठीक है, पर खुद को कैसे मुतमईन करती? नवंबर शुरू हो चुका था। मौसम अब पहले से ठंडा हो गया था। रात के 8 बज रहे थे। वो स्याह लिबास में लॉन में एक चेयर पर बैठी थी। मौसम में खुनकी बढ़ रही थी जब कोई उसके सामने आ बैठा।
कैसी हो जमल, तबीयत कैसी है? फरहाद बहुत नरमी से बोल रहा था। ठीक हूँ। वो बात ऐसा आवाज में बोली, लग तो नहीं रही कोई बात हुई है क्या, या कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर कर सकती हो। उसके चेहरे पर कुछ खोजते हुए बहुत गंभीर लहजे में बोला, नहीं मैं ठीक हूँ। बहुत सारे आंसू अंदर उतारते हुए वो बोली, अच्छा फिर इतनी उदास क्यों लग रही हो? और अबीरा बता रही थी कि तुम एग्जाम्स नहीं दे रही हो, क्यों? मेरा एक पेपर तो रह गया, बाकी देने का क्या फायदा, और अब मेरा दिल भी नहीं। वो बेदिली से बोली। क्यों दिल नहीं? तुम तो अपनी स्टडीज को लेकर बहुत टेंस थी। फरहाद को हैरानगी हुई। बस अब दिल नहीं? जमल ने इतना ही कहा और उठकर अंदर जाने लगी तो फरहाद को वो अजीब खोई खोई सी लगी। वो उसके लिए बहुत फिक्रमंद था। उस रात ऐसा कुछ जरूर हुआ था जिसने जमल को बदल दिया था। वो उससे पूछना चाहता था पर वो बताना नहीं चाहती थी। फरहाद ने बेबसी से उसे जाते हुए देखा और खुद भी उठकर अंदर चला गया। सबरीना बहुत बुरे मूड में अपने कमरे में बैठी थी। वो जैन को कब से कॉल्स कर रही थी पर वो उठा नहीं रहा था। वो जैन से बहुत मोहब्बत करती थी पर उसे हासिल नहीं कर सकती थी जब तक जमल थी। वो जैन को नहीं पा सकती थी। उसने दोबारा जैन को कॉल की तो अब की बार उसने कॉल उठा ली। हेलो जैन, कब से कॉल कर रही हूँ, उठा क्यों नहीं रहे? बिजी था, कोई काम है? वो हाँ, वो हसन और शमसा पार्टी दे रहे हैं तो मैं चाहती हूँ तो हम साथ चलें। सॉरी स्वीटी, पर मैं अभी इस्लामाबाद हूँ, अगले माह तक वापस आऊँगा। तुम अकेली चली जाना। वो माजरत करते बोला, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ जैन। सबरीना ने बेचैनी से कहा, सॉरी पर मैं नहीं आ सकता। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ जैन। सबरीना ने पहले कई बार ये कहा था पर जैन हंसकर टाल देता था। पर मैं जमल से मोहब्बत करता हूँ, वो फौरन बोला। पर वो तुम्हें मुझसे ज्यादा नहीं चाह सकती, वो बेबसी से बोली। पर मैं उसी को चाहता हूँ। ओके बाय बेबी। वो फोन रखते हुए बोला तो सबरीना ने गुस्से से मोबाइल देखा। एक दिन मैं तुम्हें जमल से छीन के रहूंगी जैन, और वो खाली हाथ रह जाएगी। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं करूंगी। सबरीना ने पास पड़े खाकी लफाफे को देखकर सोचा। दिखने में बज़ाहिर सब ठीक था लेकिन कुछ भी ठीक नहीं था। जमल ने बज़ाहिर अपना गम छुपा लिया था लेकिन अंदर से वो बिल्कुल टूट गई थी। रोज रात को सोने से पहले वो ढेरों आंसू बहाती। वो जैन से नफरत करने लगी थी, शिद्दत वाली नफरत। इस बात को 1.5 माह हो गया था पर जैन अब तक घर नहीं आया था, बल्कि किसी काम से न्यूयॉर्क गया हुआ था। और जमल चाहती थी कि वो कभी वापस ना आए, बल्कि मर जाए और दोबारा कभी उसे देख ना सके। इस दौरान दाइम और उसकी दादी 2 बार आ चुके थे और नूर का हाथ मांगा था, पर फातिमा और अहमद ने सोचने का वक्त मांगा था। ये दिसंबर की एक उदास शाम का जिक्र है। आज दाइम और उसकी दादी डिनर पर इनवाइट थे। नूर के लिए दाइम सबको पसंद आया था। उन्होंने आज हाँ कर देनी थी। नफीस साहब की फैमिली भी इनवाइटेड थी। जमल, फातिमा और नाहिद किचन में हेल्प कर रही थी जब उसे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। आज उसे दिन में 2 बार उल्टी भी आई थी पर वो इग्नोर कर गई। पर इस वक्त बहुत बुरी हालत हो रही थी। उसने बमुश्किल स्लैब का सहारा लिया, तभी आंखों के आगे अंधेरा आया और वो बेजान होते वजूद के साथ जमीन पर गिर गई। फातिमा और नाहिद काम छोड़कर उसकी जानिब लपकी। जमल, क्या हुआ जमल? फातिमा उसके गाल थपथपाकर बोली, पर वो बेहिस्सो हरकत पड़ी रही। तभी फरहाद किसी काम से किचन में आया तो जमल को बेहोश देखकर परेशान हो गया। जमल को क्या हुआ? पता नहीं बेटा, इसे उठाओ और कमरे में ले चलो, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। नाहिद ने उसे कहा और खुद डॉक्टर को कॉल मिलाने लगी। फरहाद ने जल्दी से जमल को उठाया और उसके कमरे में ले आया। लॉन्ज में सब ने ये मंजर देखा। फातिमा भी कमरे में आई। फरहाद ने उसे बेड पर लेटा दिया। फातिमा उसके सरहाने बैठ गई। आप फिक्र नहीं करें फूफो, जमल ठीक हो जाएगी। फरहाद ने इन्हें तसल्ली दी और बाहर आ गया जहां सब बैठे सवालिया नजरों से उसे देख रहे थे। जमल को क्या हुआ फरहाद? अहमद साहब ने पूछा। जमल बेहोश हो गई है पापा, डॉक्टर को बुलाया है, वो परेशानी से बोला और दाइम के साथ बैठ गया। लॉन्ज में सभी बैठे थे। अहमद साहब, नफीस साहब, फारिया, नौफल, सबरीना, दाइम और उसकी दादी, जबकि अबीरा और नूर कमरे में थी। थोड़ी ही देर में डॉक्टर आ गई और जमल का चेकअप किया। इस वक्त कमरे में फातिमा और नाहिद के अलावा फारिया और सबरीना भी थी। ज्यादा परेशानी की बात नहीं, बल्कि गुड न्यूज है, आपकी बेटी प्रेग्नेंट है, मुबारक हो, बस इसका अच्छे से ख्याल रखें। डॉक्टर की बात पर नाहिद और फातिमा दंग रह गईं और हैरानगी से एक दूसरे को देखा। वहीं फारिया और सबरीना भी हैरान रह गईं। ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर? आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। ये तो अभी फातिमा कुछ भी कहती कि सबरीना बोल पड़ी, आपको यकीन है डॉक्टर? जी बिल्कुल। डॉक्टर मुस्कुराई, मेडिसिन और चंद एक हदायत देते चली गई। जमल को होश आ गया था। उसने डॉक्टर की सारी बात सुन ली थी। उस पर तो गोया आज फिर कयामत टूट पड़ी थी। मुबारक हो जमल, तुम माँ बनने वाली हो। वैसे बताया नहीं तुमने कभी हमें उसके फादर कौन है? सबरीना ने बहुत दिलचस्पी से जमल को कहा था। जिस पर जमल का दिल चाहा वो मर जाए। तौबा तौबा, गजब खुदा का। फातिमा, ये तरबियत की है तुमने अपनी बेटी की? ये क्या गुल खिलाया तुम्हारी बेटी ने? फारिया कानों पर हाथ रखती ऊंचा ऊंचा बोली। नाहिद गौसीली नजरों से जमल को देखते कमरे से बाहर निकल गई। जमल जल्दी से बिस्तर से उठी और माँ के सामने आ खड़ी हुई। मामा, मैंने कुछ नहीं किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। वो फातिमा के हाथ थाम कर रोने लगी तो उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए। फारिया और सबरीना लॉन्ज में आ गई और डॉक्टर की कही बात सबको बताने लगी। फरहाद हैरत से शशदर रह गया। उसे लगा जैसे उसके कदमों तले से जमीन सिरक गई हो। दाइम ने भी हैरत से फरहाद को देखा। ये सब क्या बकवास है सबरीना? अहमद गुस्से से बोले। ताया अब्बा, आपको हमेशा जमल से ही प्यार था ना? अब देखें अपनी लाडी के करतूत। सबरीना ऊंची आवाज में बोली। नूर और अबीरा भी आवाजें सुनकर लॉन्ज में आ गईं।
जमल को बुलाओ, वो गरज कर बोले तो वो मुस्कुराती हुई अंदर गई। मामा प्लीज मेरा यकीन करें, मेरा इस सब में कोई कसूर नहीं। वो हनूज रो रही थी। फातिमा पत्थर बनी खड़ी थी। चलो जमल, ताया अब्बा बुला रहे हैं। सबरीना ने जताती नजरों से उसे देखा और उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगी। फातिमा भी बाहर आई। जमल ने सबकी तरफ देखा। सब उसे मुजरमों की तरह देख रहे थे। सिर्फ एक फरहाद था जो हैरत ज़दा था। उसे लग रहा था ये जमल की नहीं, उसकी रुसवाई थी। वो जिससे बेहद मोहब्बत करता था, उसकी हिफाजत नहीं कर पाया था। ये सब क्या है जमल? अहमद साहब गरज कर बोले। जमल कुछ न बोली और मजीद रोने लगी। रोना बंद करो और बताओ क्या ये है, ये सब सच है? वो मजीद ऊंचा बोली। इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं मामू, वो रोते हुए बोली। अहमद ने जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा तो वो औंधे मुंह फर्श पर गिरी। फरहाद जल्दी से आगे आया और जमल को कंधों से पकड़कर उठाया। पापा एटलीस्ट उसे बताने तो दें। फरहाद ने एहतजाज किया। वो जानता था जमल बहुत अच्छी लड़की है, वो उस पर मुकम्मल भरोसा करता था। जमल को सब में एक वही अपना हमदर्द लगा। ये तुमने क्या किया जमल? तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, जीते जी मार दिया। काश तुम्हारे बाप के साथ मैं भी मर जाती। किसका बच्चा है ये? फातिमा उसे कंधों से झंझोड़ कर बोली। मामा ये सब जैन ने किया है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। प्लीज, वो माँ के सामने बेबसी से बोली, जबकि इस बात पर सबके 14 तबक रोशन हो गए। फरहाद का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने गुस्से से मुठ्ठियां भींच ली। जमल का गुनाहगार उसका अपना ही भाई था जिससे वो बहुत मोहब्बत करता था, जबकि सबरीना का दिमाग शल हो गया। ये क्या बकवास कर रही हो? किसका गुनाह मेरे बेटे के सर डाल रही हो? नाहिद ने उसका कंधा झंझोड़ कर बोला तो जमल ने दुख से उन्हें देखा। बकवास बंद करो, अपनी जैन पर इल्जाम मत लगाओ, वो तो 2 माह से यहाँ है ही नहीं, सबरीना ने जहर खान लहजे में कहा। फातिमा ने भी उसे थप्पड़ मारा। वो फिर से उसे मारने ही लगी कि फरहाद ने उनका हाथ पकड़ लिया। बस फूफो, बहुत हो गया। आप सब लोग जमल के साथ ज्यादती नहीं कर सकते। वो बेकसूर है, बजाय इसके साथ देने के आप लोग उसी को कसूरवार ठहरा रहे हैं। और खबरदार, अब किसी ने जमल पर हाथ उठाया तो। फरहाद ने बुलंद आवाज में कहा। जमल देखो मेरी तरफ, मुझे बताओ सच क्या है? मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई तुम्हारा यकीन ना भी करे पर मैं करूंगा। बताओ मुझे। फरहाद ने उसे कंधों से थामते नरमी से कहा। फरहाद भाई, कोई मेरा यकीन नहीं करा पर सच यही है, मैं बेकसूर हूँ। जैन ने किया है ये सब, उसने मेरे साथ जबरदस्ती। उससे आगे जमल से बोला नहीं गया, बल्कि वो चेहरा दोनों हाथों में छुपा के रोने लगी। सुन लिया सबने, अब कोई जमल से कुछ नहीं कहेगा, फरहाद ने गुस्से से कहा तो सबरीना ने हंसते हुए तालियां बजाई। वाह फरहाद भाई, क्या एक्टिंग करते हैं आप। सबरीना मुस्कुराकर बोली तो सबने हैरत से उसे देखा। कहना क्या चाहती हो तुम? फरहाद उसे घुर कर बोला। अपना गुनाह आप जैन पर क्यों डाल रहे हैं? सबरीना की बात पर सबने उसे देखा। क्या मतलब? फरहाद तेज से बोला। मतलब ये कि जमल के साथ जो कुछ भी हुआ वो जैन ने नहीं बल्कि आपने किया है। क्यों जमल? साथ ही जमल से राय मांगी। वो दंग रह गई और जल्दी से सरनफी में हिलाया। क्या बकवास है ये? वो धाड़ा था। बकवास नहीं, सच है ये, और मेरे पास सबूत भी है। ये देखें। सबरीना ने अपने बैग से एक खाकी लिफाफा निकाला और अहमद साहब के हाथ में दिया। उन्होंने लिफाफा खोलकर देखा। अंदर कुछ तस्वीरें थी जिसमें फरहाद और जमल थे। एक तस्वीर में जमल लॉन के घास पर बैठी थी। दूसरी तस्वीर में फरहाद ने जमल को उठाया हुआ था। एक तस्वीर में फरहाद ने उसका बाजू थामा हुआ था और वो कहीं वो उसके गले लगी हुई थी। ये इसी रात की तस्वीरें थी जो किसी ने यानी सबरीना ने ली थी और अब वो इन्हें बहुत गलत मौका पर इस्तेमाल कर रही थी। अहमद साहब हैरत से वो तस्वीरें देखी और गुस्से से फरहाद पर उछाल दी। जब जमल और फरहाद की नजर इन तस्वीरों पर पड़ी तो दोनों ने हैरानगी से एक दूसरे को देखा। आई कांट बिलीव दिस, अहमद ने फरहाद का गिरबान पकड़कर कहा था। वो हैरानी से बाप को देखने लगा। इस वक्त सब खामोश तमाशाई बने हुए थे। डैड, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? वो बेयकीनी से बोला। और इन तस्वीरों से कुछ साबित नहीं होता, बिल्कुल साबित नहीं होता, पर यह जरूर पता चलता है कि ये जैन ने नहीं किया। और मुझे तो लगता है कि आपकी शुरू से ही जमल पर नजर थी, तभी तो आपने ये सब किया उसके साथ और अपने भाई को भी धोखा दिया। सबरीना बहुत आराम से बोली। फरखंदा बेगम दाइम की दादी ने हैरत से सब सुना और दाइम को चलने को कहा तो वो बेबसी से फरहाद को देखता चला गया। ये उनका फैमिली मैटर था, शायद इस वक्त उसका चले जाना ही मुनासिब था। बस करो सबरीना, बहुत हो गया, झूठ मत बोलो। फरहाद भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब जमल की बर्दाश्त जवाब दे गई। उसका दिल चाहा जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। इससे मजीद कुछ सुना नहीं गया तो वो चीख कर बोली। मैं समझ सकती हूँ जमल, तुम फरहाद भाई को बचाने के लिए कह रही हो, पर सच बोल दो, अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सबरीना उसकी हमदर्द बनते हुए बोली। बकवास बंद करो, तुम जैन को बचा रही हो, मैं जानती हूँ, और क्यों कर रही हो ये भी जानती हूँ। जमल फिर से चीखी थी। बस, अहमद की आवाज पर सब खामोश हुए। जो होना था हो गया, अब हमें आगे का सोचना होगा। फरहाद, तुमसे गुनाह तो हुआ है और मुझे बहुत शर्मिंदगी है कि मेरी औलाद होकर तुमने ऐसा किया। अहमद ने दुख से कहा। पापा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, फरहाद ने सबरीना को घूर कर कहा। मामू, फरहाद भाई ने ऐसा नहीं किया, जमल जल्दी से बोली। इन तस्वीरों के बाद भी कुछ जानना रह गया है, उन्होंने कहा। मैं फातिमा और जमल से बहुत शर्मिंदा हूँ। फरहाद अपनी गलती का अजाला करेगा। इस जुम्मे को ही फरहाद और जमल का निकाह होगा ताकि खानदान में हमारी इज्जत रह जाए। वो अपना फैसला सुनाते हुए बोले, जिस पर सब हैरान हुए। ये आप क्या कह रहे हैं मामू? जमल ने तड़प कर उन्हें देखा। अहमद, मेरे दोनों बेटे बेकसूर हैं। ये लड़की झूठ बोल रही है, अपना गुनाह मेरे बेटों पर डाल रही है। नाहिद ने कहा। बस नाहिद भाभी, कब से आप मेरी बेटी को गुनाहगार ठहरा रही हैं और मैंने भी इस पर यकीन नहीं किया, फातिमा ने दुख से कहा।
बस बहुत हो गया, मैं फैसला कर चुका हूँ, किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, अब जाएं सब। अहमद साहब गरज कर बोले तो सब अपने कमरों में जाने लगे। नफीस और उनकी फैमिली भी जाने लगी। सबरीना बहुत खुश थी। बिलाखिर जमल और जैन का रिश्ता टूटा था। फरहाद और जमल की शादी हो जाएगी और वो जैन को हासिल कर लेगी। वो अपने कमरे में आकर फिर से रोने लगी। नूर और अबीरा भी उसके पास आ गई और उसे चुप करवाने लगी। इन दोनों को जमल पर यकीन था, पर हैरत थी कि बड़ों को यकीन क्यों नहीं आता। जमल, आप ही मुझे माफ कर दें, मैं अपने भाई की इस घटिया हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अबीरा जमल के आगे हाथ जोड़कर बोली, नहीं, तुम क्यों माफी मांग रही हो, तुम्हारी इसमें क्या गलती। जमल अबीरा का हाथ थामकर बोली, आपी, आपने हमें क्यों नहीं बताया। नूर ने जमल से कहा। वो भी रो रही थी। मैं कैसे बताती, जमल ने रोते हुए कहा। तभी फरहाद वहां आया। जमल, तुमने मुझे उसी दिन क्यों नहीं बताया, मैं उसी दिन जैन की जान ले लेता, आखिर वो इतना कैसे गिर सकता है। उसने गुस्से से सुर्ख होते कहा। तो जमल जल्दी से उठकर सामने आई। नहीं फरहाद भाई, प्लीज आप मेरी वजह से उसे कुछ नहीं कहेंगे, प्लीज। मामी पहले ही मुझे कसूरवार समझ रही हैं, प्लीज। वो उसके आगे मिन्नत करके बोली। जमल, तुम विक्टिम हो ना कि मुजरिम, और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। फरहाद ने उसकी बिखरती हालत देखकर कहा। जमल आपी, आप परेशान ना हो, फरहाद भाई आपको बहुत खुश रखेंगे। अबीरा ने मुस्कुराकर कहा। तो जमल ने फरहाद की जानिब देखा। हाँ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा जमल, कभी कोई दुख नहीं आने दूंगा। फरहाद ने उसकी जानिब देखकर अज़म से कहा। नहीं फरहाद भाई, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, प्लीज। जमल ने ये कहते हुए नजरें चुराई थी। लेकिन क्यों जमल, फरहाद ने हैरानगी से पूछा। जमल, ये शादी करेगी फरहाद, क्योंकि इसके सिवा कोई चारा नहीं। तुम इस बच्चे के बाप हो, तुम्हें माशरे में जमल को इज्जत देना होगी, अपने बच्चे को अपना नाम देना होगा। तभी फातिमा वहां आई और फरहाद से सख्त लहजे में बोली। मामा, ये आप क्या कह रही हैं, फरहाद भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया। जमल तड़प कर बोली। तुम चुप रहो जमल, जब भाई साहब ने कह दिया है तो तुम फरहाद से ही शादी करोगी, उन्होंने जमल को कहा। मैं जमल को अपनाना चाहता हूँ, मैं इस बच्चे को भी अपना नाम दूंगा, आप फिक्र नहीं करें फूफो। फरहाद ने अपनी सफाई पेश करने के बजाय मजबूत लहजे में कहा। तो जमल ने सर झुका लिया। यही बेहतर होगा, फातिमा ने कहा और कमरे से निकल गई। फरहाद भाई प्लीज, आप सबके दबाव में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करें, मुझे शर्मिंदा मत करें प्लीज। जमल ने लजाजत से कहा। मैं किसी के दबाव में आकर नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, तुम फिक्र नहीं करो, बस अपना ख्याल रखो। फरहाद एक नजर उसे देखता कमरे से निकल गया। आपी, आप फिक्र नहीं करें, चले लेट जाएं, आपकी तबीयत नहीं ठीक। अबीरा और नूर ने उसे मेडिसिन देकर सुला दिया तो वो वक्ती तौर पर पुरसुकून हो गई। शाम का वक्त था। अबीरा उदास सी छत पर बैठी थी जब साथ वाले घर की छत पर नौफल आया। दोनों घरों की छतें मिली हुई थी। क्या हुआ अबिया, उदास क्यों हो, वो मुंडीर से टेक लगाकर बोला। तुम जानते हो कल क्या हुआ था, जमल आपी के साथ बहुत बुरा हुआ, वो इस सब की हकदार नहीं थी, वो अफसरदगी से बोली। हाँ वाकई जमल के साथ कल बहुत गलत हुआ और हमारे बड़ों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो भी उदासी से बोला। एक वक्त था जब मैं जमल आपी को सबसे खुशकिस्मत लड़की तस्वर करती थी कि जिन्हें अपनी मोहब्बत बचपन में ही मिल गई, पर आज वो कितनी बदकिस्मत हो गई हैं। अबीरा को जमल की फिक्र थी। हाँ, अल्लाह जमल के लिए आसानियां पैदा फरमाए। अब तो मेरा मोहब्बत से एतबार ही उठ गया है, अबीरा ने कहा। ऐसे मत कहा करो यार, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, नौफल फौरन बोला। कहा ना मेरा मोहब्बत से एतबार उठ गया है, वो उदासी से कहते उठी और नीचे चली गई। नौफल ने बेबसी से उसे नीचे जाते देखा। आई एम सॉरी यार, मैं कल तुम्हें मुश्किल में छोड़ाया था। फरहाद ने उसे कल की बात पर अहमद साहब का फैसला बताया तो नाइम फरहाद के हाथ पर अपना हाथ रखकर बोला। नहीं यार, तुमने अच्छा किया, दादी भी परेशान हो रही थी। फरहाद ने कहा। हाँ बस दादी की वजह से मुझे जाना पड़ा, और जानते हो दादी अब मेरी और नूर की शादी के लिए भी मना कर रही हैं, पर मैंने भी कहा कि शादी करूंगा तो सिर्फ नूर से। दाइम ने अज़म से कहा। दादी वक्ती नाराज हैं, कल का हंगामा देखकर उन्होंने यही करना, पर वो मान जाएंगी, डोंट वरी। फरहाद ने उसे समझाया। हाँ मान तो जाएंगी, मैं मना लूंगा। दाइम ने कहा। वैसे तुम्हारे पापा ने जमल और तुम्हारी शादी का बिल्कुल ठीक फैसला लिया है। जैन जमल के काबिल नहीं, तुम ही हो जो उसके काबिल हो और सच्ची मोहब्बत भी करते हो। नाइम अपने दोस्त के लिए बहुत खुश था। इस तरह जमल और फरहाद का निकाह हो रहा था, जिसके लिए नाइम ने बहुत दुआएं की थीं। उसकी बात पर फरहाद मुस्कुराया। क्या हुआ, इतने चुप चुप क्यों हो, दाइम ने उससे पूछा। मैं जहन पर बहुत गुस्सा हूँ, बल्कि मेरा खून खोल रहा है कि वो जमल की इज्जत कैसे बर्बाद कर सकता है, दिल चाह रहा है उसकी जान ले लूँ, वो गुस्से से बोला। हाँ, हरकत तो उसकी नाकाबिले माफ़ी है। दाइम को भी गुस्सा आया। फरहाद ने महज हुंकारा भरा तो दाइम भी खामोश हो गया। सबरीना कल रात से अपने कमरे में बंद थी। वो जानती थी जमल के साथ ये सब जैन ने किया है। वो जैन से बहुत मोहब्बत करती थी और उसकी ये बेवफाई सह नहीं पा रही थी। जमल और फरहाद की शादी की सुनकर वो पुरसकून थी। आखिर जमल और जैन तो अलग हुए, फिर वो अपने तरीके से जैन को भी पालेगी और उससे बेवफाई के सारे हिसाब किताब भी लेगी। वो छत पर टहल रही थी, स्याह लंबी कमीज के साथ चूड़ीदार पाजामे और हमरंग दुपट्टे में। वो रात का ही गहरा हिस्सा लग रही थी। कल जुमा था, जमल और फरहाद का निकाह था, पर वो ये निकाह नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी फरहाद हमदर्दी में और तरस खाकर उससे शादी कर रहा है। वो उसे आजमाइश में नहीं डालना चाहती थी। दूसरा, वो हमेशा फरहाद को भाई समझती थी, कभी उस बारे में सोचा भी नहीं था, पर किस्मत उसे किस मोड़ पर ले आई थी। वो इन्हीं सोचों में मगन थी जब किसी ने उसके आगे चुटकी बजाई। कॉफी पियोगी, फरहाद ने कॉफी का मग मंडीर पर रखे थे। नहीं, जमल ने नफी में सर हिलाया। पी लो, ठंडी हो रही है। तबीयत कैसी है अब,
कॉफ़ी का मग आगे करते उसने नरमी से पूछा। ठीक हूँ, जमल ने कॉफ़ी का मग थाम लिया। परेशान लग रही हो, क्या बात है? कुछ नहीं, जमल ने कहा। अपने सारे गम मुझे दे दो, बस खुश रहा करो। फरहाद ने कॉफ़ी का घूंट भरते हुए कहा तो जमल ने हैरानगी से उसे देखा। फरहाद भाई प्लीज़ मुझे शर्मिंदा ना करें, मैं ये शादी नहीं कर सकती, और शायद आपको मालूम नहीं, इस्लाम की रोह से हमारा निकाह भी जायज़ नहीं होगा। वो रूहानसी होकर बोली। जानता हूँ, जब तक बच्चे की पैदाइश नहीं हो जाती निकाह जायज़ नहीं होगा, डैड भी जानते हैं, पर यह निकाह दुनिया को दिखाने के लिए है। हमारा असल निकाह तो बच्चे की पैदाइश के बाद होगा। फरहाद ने रसान से समझाया। क्या ये सब ज़रूरी है? वो बेजार होकर बोली। बिल्कुल ज़रूरी है, वो दू बदू बोला। पर मैंने कभी आपके बारे में ऐसा नहीं सोचा, और अब मैं कोई रिश्ता बनाना ही नहीं चाहती। मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, बस दिल चाहता है मौत आ जाए। वो बेबसी से बोली। ऐसी बातें मत सोचो जमल, तुम मेरे लिए बहुत अनमोल हो। हर इंसान पर कोई ना कोई आजमाइश ज़रूर आती है, किसी पर बड़ी तो किसी पर छोटी, पर अच्छा इंसान वही होता है जो इस पर सब्र करे। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा, पर मेरे बस में होता तो उसी वक्त जैन की जान ले लेता, पर खैर छोड़ूंगा तो मैं अब उसे नहीं। फरहाद ने नरमी से उसे समझाया तो वो खामोश हो गई। मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती फरहाद भाई, उसने सर झुकाकर बोला। किसने कहा तुम बोझ हो? ये फजूल बातें सोचना छोड़ दो, बस अपनी सेहत का ख्याल रखो, और अब रेस्ट करो, कल बात करेंगे। फरहाद ने कॉफ़ी का मग मुंह से लगाते हुए कहा तो वो सर हिलाती नीचे चली गई। फरहाद ने मोहब्बत से उसे जाते हुए देखा था। आज जुमा था, जमल और फरहाद का निकाह था। घर में किसी भी फंक्शन का एहतमाम नहीं था, बस चंद एक ज़रूरी रिश्तेदार मधु थे, और फरहाद के दोस्तों में से बस दाइम आया था। जमल और जैन की मंगनी का तो सब जानते थे, पर अब जमल और फरहाद के निकाह पर सब हैरान थे। नाहिद और अहमद ने सबको ये कहकर खामोश करवा दिया कि जैन और जमल बड़ों के दबाव की वजह से मंगनी पर मजबूर थे, इसलिए उन्होंने मंगनी ख़त्म कर दी, और अब फरहाद और जमल की खुशी पर यह निकाह हो रहा है। वो अपने कमरे में आईने के सामने बैठी थी। पिंक कलर की मैक्सी में वो बहुत प्यारी लग रही थी। मेकअप बहुत लाइट था, ज्वेलरी भी कम पहनी हुई थी। वो इस रिश्ते पर राजी नहीं थी, पर सबकी वजह से मजबूर थी। अब तो उसके जीने को बिल्कुल दिल नहीं चाहता था, पर सांसें बाकी थीं तो जीना भी आजमाइश थी। वो बहुत भारी दिल के साथ बैठी थी। नूर उसका दुपट्टा सेट कर रही थी। माशाल्लाह, आप ही बहुत प्यारी लग रही हैं, नूर ने उसका गाल छूकर नरमी से कहा। नूर तुम जानती हो मरना किसे कहते हैं? वो आईने में देखते बहुत आहिस्ता से बोली थी। जब इंसान की सांसें निकल जाए तो वो मर जाता है। नूर ने उसका जर्द चेहरा देखकर कहा। जब एक लड़की की इज्जत चली जाए पर सांसें फिर भी बाकी रहें, उसे मरना कहते हैं नूर। जब वो जिंदा लाश बन जाती है फिर उसकी कोई जिंदगी नहीं रहती, कोई उसकी इज्जत नहीं करता, बस अपने दामन में दाग लिए लोगों को सफाइयां देती रहती है कि ये उसका गुनाह नहीं था। उसकी आंखों से मोती टूटकर गिरे थे। नूर की भी आंखें भर आईं। उसने समल को अपने हिसार में लिया तो वो मजीद रोने लगी। आप ये सब मत सोचा करें प्लीज, आपकी इसमें कोई गलती नहीं, फिर आप क्यों टेंशन ले रही हैं? वो जमल का कंधा थपथपाकर बोली। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो नूर ने हैरानगी से देखा। नौफल दाइम को अंदर ला रहा था। अस्सलाम वालेकुम, दाइम ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, नूर ने कहा। जमल ने अपने आंसू साफ किए और सलाम का जवाब दिया। कैसी हैं आप जमल? वो नूर को एक नज़र देखते जमल से मुखातिब हुआ। ठीक हूँ, वो आहिस्ता से बोली। मैं बहुत खुश हूँ कि फरहाद और आपका निकाह हो रहा है। यकीन जानिए फरहाद जितनी मोहब्बत आपसे कोई नहीं कर सकता। नाइम ने सच्चे दिल से कहा तो वह हैरान होकर उसे देखने लगी। हैरान मत हो, मैंने आपसे कहा था ना कि अगर कभी जैन से ज़्यादा अच्छा इंसान आपको मिले तो उसका हाथ थाम लीजिएगा। तो फरहाद बहुत अच्छा है, आप उसका साथ अपना लें, वो आपको बहुत खुश रखेगा। दाइम नरमी से बोला। जमल कुछ नहीं बोली। नूर को दाइम की बात अच्छी लगी। दाइम ने एक नज़र नूर पर डाली, जिस पर नूर ने नज़रें झुका ली। नौफल मौलवी साहब को बुलवा लो, नाइम ने कहा तो नौफल मौलवी साहब को बुला लिया। फातिमा, नाहिद और अहमद भी साथ ही आए थे। मौलवी साहब ने निकाह के कलमात अदा किए तो वो किसी रोबोट की तरह अमल करती रही, बगैर किसी जज्बे या एहसास के। जमल की रजामंदी के बाद मौलवी साहब फरहाद के पास आए। कबूलो हिजाब के बाद उसके दस्तखत हुए और कागजी तौर पर वो निकाह हो गया था। अहमद साहब के सर से कोई भारी बोझ उतरा था। वो जमल को शर्मिंदगी और रसवाई से बचाना चाहते थे, तभी उन्होंने जल्द अज जल्द ये निकाह करवाया था। दुनिया वालों की नज़र में उनकी इज्जत बच गई थी। निकाह के बाद जमल को बाहर लाया गया और फरहाद की हमरा बिठाया गया। वो किसी को भी नहीं देख रही थी, बस रोबोट की तरह वहां बैठ गई और खला में देखे गई। फरहाद ने अफसरदगी से उसकी जानिब देखा। वो कोई उदास शाम का गीत लग रही थी, जैसे जहां भर की उदासी खुद में समाये हुए हो। वो थोड़ी देर बैठी और फिर नूर की हमरा वापस कमरे में आ गई। निकाह की तकरीब खत्म हो गई थी, सब खाना खाकर चले गए तो फरहाद दाइम के साथ बाहर चला गया। नाहिद इस रिश्ते पर खुश नहीं थी, वो जमल को ही गलत समझ रही थी। उन्होंने जमल को बुलाया तक नहीं था, जिस पर फातिमा को भी गुस्सा था, पर फिलहाल फातिमा मुतमईन थी क्योंकि जमल के लिए फरहाद बेहतरीन जोड़ था। सबरीना ने कल ही उसे फरहाद और जमल के निकाह के मुतालिक बता दिया था। वो अर्जेंट फ्लाइट लेकर पाकिस्तान पहुंचा था। वो ये कभी भी नहीं होने दे सकता था। वो जमल को किसी और का होते हुए नहीं देख सकता था। पर वो रात को 9 बजे घर पहुंचा, जब सब कुछ हो चुका था। वो कितने दिन बाद घर आया था, पर सब वैसा नहीं रहा था। लाउंज में कोई नहीं था। वो सीधा जमल के कमरे में आया। वो बेड पर बैठी किसी सोच में गुम थी। जब आहट की आवाज़ पर दरवाजे की जानिब देखा
तो जैन को वहां देखकर वो खौफ से उठी। उसे वही रात याद आ गई। वो उठकर वहां से भाग जाना चाहती थी, पर जैन उसके पास आ खड़ा हुआ। तुमने फरहाद भाई से निकाह कर लिया? उसे कंधों से थाम कर वो मुस्तरिब अंदाज में बोला। छोड़ो मुझे, जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वो उसका हाथ पीछे करते खौफ के आलम में बोली। बताओ, मुझे निकाह हो गया? वो बेचैनी से बोला। हाँ हो गया, तुम जाओ यहाँ से, चले जाओ। वो उसे पीछे को धक्का देते हुए बोली। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, तुमने एक बार भी मेरा नहीं सोचा, और ये बच्चा भी मेरा है। तुम कैसे किसी और से शादी कर सकती हो? वो इस तरह की कैफियत में बोला जबकि जमल को उसके वजूद से, उसकी बातों से घिन आने लगी। इससे पहले वो कोई जवाब देती, फरहाद गुस्से से अंदर आया और आते ही साथ ही जैन को गिरबान से पकड़ लिया। वो सब बातें सुन चुका था। बिना कुछ कहे फरहाद ने उसके मुंह पर थप्पड़ों और मुक्कों की बरसात कर दी। वो हक्का बक्का रह गया। फरहाद भाई, वो अपना गाल थामता हैरानगी से बोला। अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम भी मत लेना, घटिया इंसान, मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं। वो जैन के मुंह पर मुक्का मारकर बोला तो वो कमरे के दरवाजे पर जा गिरा। जमल डर गई और जल्दी से आगे आई, पर फरहाद ने जैन को गिरबान से खींचा, लातों और मुक्कों से मारना शुरू कर दिया और घसीटता हुआ लाउंज में ले आया। शोर सुनकर सब भाग कर आए थे। फरहाद भाई प्लीज इसे छोड़ दें। जमल ने फरहाद को पीछे करना चाहा। जल्दी में वो ये भी भूल गई कि अब वो फरहाद को भाई नहीं कह सकती थी। पीछे हो जाओ जमल, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसने जो तुम्हारे साथ किया, इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। फरहाद पर कोई जुनून सवार था। वो भारी गुलदान उसे मारने ही वाला था कि अहमद ने उसके हाथ से बरवक्त खींचा। पागल मत बनो फरहाद, छोड़ो इसे। उन्होंने फरहाद को पीछे खींचा। फरहाद, ये क्या कर रहे हो? एक बेहया और बदकिरदार लड़की की खातिर अपने भाई को मार रहे हो? जान से मार दोगे क्या इसे? नाहिद तैश से बोली तो जमल ने मुंह पर हाथ रखकर सिसकी दबाई थी। जमल नहीं, आपका ये बेटा बदकिरदार है, फरहाद चीख कर बोला था। जैन कुछ भी नहीं बोला था, बल्कि खामोशी से उठ खड़ा हुआ तो अहमद ने रखकर एक थप्पड़ जैन को मारना। नाहिद हक्का बक्का रह गई। अहमद, आप अपने ही बेटे को मार रहे हैं, ये है जमल का असली गुनाहगार, इसी ने किया है ये सब। वो उसे मजीद एक थप्पड़ मारकर बोले। डैड, जैन ने बेयकीनी से बाप की तरफ देखा। तुमने ही किया है ये सब? तुम इतने कैसे गिर सकते हो? मेरी औलाद होकर तुमने घर की लड़की की इज्जत खराब कर दी। वो उसका कंधा झंझोड़ कर बोले। बाकी सब हैरानगी से सुन रहे थे। हाँ डैड, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई, पर मैं जमल से बहुत मोहब्बत करता हूँ। आपने कैसे उसकी शादी फरहाद भाई से करवा दी? वो मेरी मोहब्बत है, मैं जमल के बगैर नहीं रह सकता। वो अब भी ढिठाई से बोला। मेरी बीवी का नाम मत लो, घटिया इंसान। फरहाद उंगली उठाकर तैश से बोला था। आपने मेरे हक पर डाका डाला है फरहाद भाई, मुझसे मेरी मोहब्बत छीनी है। जैन बजाय शर्मिंदगी के मजीद ढिठाई से बोला। तो फरहाद आगे बढ़कर उसे मारने ही वाला था कि नाहिद आगे आ गई। अब जमल की खातिर अपने भाई की जान लोगे क्या? वो चीख कर बोली। फरहाद, जमल को लेकर उसके कमरे में जाओ, अहमद साहब ने बुलंद आवाज में कहा तो वो बेबसी से पीछे हटा और उसका हाथ पकड़कर ले गया। तुम इस घर में नहीं रहोगे, बदकिरदार इंसान की मेरे घर में कोई जगह नहीं, निकलो यहाँ से। फरहाद और जमल के जाते ही उन्होंने जैन को धक्का देकर कहा था। डैड, वो हैरान हुआ। दिल चाह रहा है तुम्हारी जान ले लूं, निकल जाओ मेरे घर से। वो तैश के आलम में बोले। ये आप क्या कर रहे हैं अहमद? जैन हमारा बेटा है, नाहिद ने तड़प कर कहा, और हमारा बेटा बदकिरदार है। मुझे ऐसी औलाद नहीं चाहिए, निकलो यहाँ से। वो जैन को बाहर की जानिब धक्का देकर बोले तो वो बेबस नजर माँ पर डालते पलट गया। फरहाद जमल को उसके रूम में ले आया और बेड पर बिठा दिया। उसका चेहरा जर्द लग रहा था, यूं जैसे अभी बेहोश हो जाएगी। पानी पियो जमल, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। फरहाद उसके आंसू साफ करते हुए बोला और गिलास उसके लबों से लगाया तो जमल ने 2 घूंट पीकर गिलास पीछे कर दिया। वो सब मुझे कसूरवार समझ रहे हैं, वो भीगी आवाज में बोली। कोई तुम्हें कसूरवार नहीं समझ रहा, तुम बहुत अच्छी हो, सब जानते हैं। मैं किसी को भी इजाजत नहीं दूंगा कि वो मेरी बीवी पर उंगली उठाए। फरहाद उसके पास बैठकर बोला तो जमल ने हैरान होकर उसे देखा। तुम बहुत खास हो जमल, और ये आंसू तुम्हारी आंखों में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और अब जहन पर बोझ मत डालो, सो जाओ, मैं यहीं बैठा हूँ, फरहाद ने नरमी से कहा और उसे लिटा दिया। फिर उस पर कंबल डाल दिया तो वो आंखें बंद करते लेट गई। फरहाद सोफे पे बैठ गया और फिक्रमंदी से उसे तकता रहा। मैं तुम्हारे सारे गम दूर कर दूंगा जमल, बस कभी मुझसे दूर मत जाना। वो दिल में उससे मुखातिब हुआ था। थोड़ी देर बाद फातिमा आ गई। फरहाद बेटा, तुम जाकर आराम करो, मैं जमल के पास हूँ, तुम जाओ, फातिमा ने कहा तो वह सर हिलाते चला गया। रात आधी हो गई थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। फातिमा उसके साथ ही सोई थी। जमल आहिस्ता से उठी, दुपट्टा उड़ा और कमरे से निकलकर छत पर चली गई। फरहाद इस वक्त अपने कमरे की खिड़की में खड़ा था। जमल को इस वक्त छत पर जाते देखा तो वो परेशानी से उसके पीछे चल दिया। जब वो ऊपर आया तो वो आसमां की जानिब देखते रो रही थी, यूं जैसे शिकवा कर रही हो। अल्लाह ताला, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या मैं इस सब की हकदार थी? मुझे ये सब नहीं चाहिए ना, ही मुझे ये बच्चा चाहिए। ये मर जाए, मैं भी मर जाऊं, मैं इस बोझ के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। प्लीज मुझे अपने पास बुला लें, मैंने इस दुनिया में नहीं रहना, प्लीज अल्लाह मुझे मौत दे दें। वो ऐसा आवाज में अल्लाह से महवे गुफ्तगू थी। फरहाद बासानी उसकी बातें सुन सकता था। शिफोन के हल्के सब्ज रंग के फ्रॉक पहने, खुले बालों में इस वक्त वो बहुत प्यारी लग रही थी, पर ये आंसू उस पर जच नहीं रहे थे। इतनी ठंड में वो बिना स्वेटर के खड़ी थी। फरहाद बेसाख्ता आगे बढ़ा और अपनी जैकेट उतारकर उसके कंधों पर रख दी। वो डरकर मुड़ी थी। क्यों अल्लाह से मौत मांग रही हो जमल? ये तो बुज़दिली है, और मैं जिस जमल को जानता हूँ वो तो बहुत बहादुर है। फरहाद
اس کی کانسی خوبصورت آنکھیں دیکھ کر بولا تھا، میں بہادر نہیں ہوں فرحات بھائی؟ وہ بولتے بولتے خود ہی حیران ہوئی، اف، لڑکی نکاح کے بعد اب دوسری بار بھائی بول رہی ہو، کیوں مجھ پر ظلم کر رہی ہو؟ فرحات بے چارگی سے بولا تو زمل اس کے انداز پر شرمندہ ہوئی، سوری میں بھول گئی تھی۔ وہ جلدی سے بولی، یہ بھی کوئی بھولنے کی بات ہے بھلا؟ فرحات نے کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ ابھی کیا کہہ رہی تھی تم؟ کچھ نہیں، زمل نے کہا، تم نے ابھی کچھ کہا تھا کہ تمہیں یہ بچہ نہیں چاہیے۔ زمل، میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ بہت غلط ہوا ہے، تم یہ سب نہیں چاہتی تھی، پر یہ سب ہو گیا۔ جس طرح تمہارا اس سب میں کوئی قصور نہیں، اس طرح اس بچے کا بھی کوئی قصور نہیں، اس لیے تم اسے بھی قبول کر لو، کیونکہ زندگی پر ہمارا اختیار نہیں ہوتا۔ تم اس کی ماں ہو، اور ماں کبھی اپنی اولاد کے مرنے کی دعا نہیں کرتی۔ فرحات نے نرمی سے اسے سمجھایا تھا، اور ماں کا لفظ اسے اجنبی لگا تھا۔ میں اس کی ماں نہیں ہوں، پلیز ایسے مت کہیں۔ وہ تڑپ کر بولی، تو پھر کون ہے اس کی ماں؟ فرحات نے پوچھا تو وہ خاموش ہو گئی۔ دیکھو زمل، میں تمہاری سچویشن سمجھ سکتا ہوں، پر تمہیں اپنے بچے کو قبول کرنا ہوگا، اور کل تم میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو گی چیک اپ کے لیے۔ وہ زمل کے کندھے کو تھپ تھپاتے نرمی سے بولا تو اس نے اسپات میں سر ہلایا۔ اب دوبارہ مایوسی کی باتیں مت کرنا، مجھے ہنسی مسکراتی ہوئی بیوی پسند ہے۔ آخر میں وہ شرارت سے بولا تو زمل نے خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے اپنے اب ساتھ ساتھ آپ کی لائف بھی خراب کر دی، آپ ایک بہت اچھی لڑکی ڈیزرو کرتے تھے، پھر میں آپ پر مسلط ہو گئی ہوں۔ فرحات بھا، اب کہ وہ بھائی کہتے کہتے رکی تھی۔ فرحات نے افسوس سے اسے دیکھا، کیسی باتیں کر رہی ہو زمل، تم بالکل بھی مجھ پر مسلط نہیں ہوئی، میں نے اپنی مرضی سے تم سے شادی کی ہے اور کوئی احسان نہیں کیا۔ میں نے تم پر، آج یہ بات جان لو، میں تم سے محبت کرتا ہوں سمل، بہت زیادہ۔ اس پر میرا اختیار نہیں تھا، پر تم مجھے ملی اس پر بھی میرا اختیار نہیں تھا۔ یہ سب ایسے ہی ہونا تھا، اور یہ تیسری بار ہو گیا ہے۔ نیکسٹ ٹائم میں بہت برا پیش آؤں گا اگر بھائی کا ورڈ تمہارے منہ سے نکلا تو۔ فرحات آواز میں تھوڑا غصہ لاتے بولا، اور وہ جو فرحات کی محبت والی بات پر حیران ہوتی کہ اس کی آخری بات سن کر شرمندہ ہوئی۔ آئی ایم سوری فرحات، میں نیکسٹ ٹائم دھیان رکھوں گی۔ وہ پہلی بار صرف فرحات بولی تھی، اور اس کے منہ سے اپنا نام سن کر فرحات سرشار ہو گیا تھا۔ گڈ گرل، فرحات نرمی سے اس کا گال تھپک کر بولا تو وہ مسکرا کر اسے دیکھتے نیچے چلی گئی۔ رات کا وقت تھا، وہ اپنے فلیٹ میں تھا، زنائشہ اس کے ساتھ ہی تھی۔ وہ دونوں ڈرنک کر رہے تھے جب دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا۔ دونوں نے حیران ہو کر دیکھا، فرحات غصے سے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے آگے آ کر زین کو گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور 2-3 مکے اس کے جبڑے پر مارے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ زونی ڈر کر بولی، بھائی بس بہت مار لیا آپ نے مجھے، وہ انگلی اٹھاتے وارن کر کے بولا۔ نہیں تو کیا کر لو گے؟ فرحات اس کی انگلی والا ہاتھ نیچے کرتے بولا، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی مار بھی برداشت کرتا رہوں۔ زین نے ضبط سے کہا، تم اتنا گر گئے زین کہ تم نے زمل کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ نارمل لڑکیوں کی طرح بیہیو نہیں کرتی، وہ اندر سے مر گئی ہے، اور تم یہاں بیٹھے ایک لڑکی کے ساتھ ڈرنک کر رہے ہو، بے شرم انسان۔ وہ ایک اور مکہ اس کے منہ پر مار کر بولا۔ زونی وہیں کھڑی تھی۔ میں زمل سے محبت کرتا ہوں، مانا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، پر آپ نے بھی کون سا دیر کی، فوراً اسے مجھ سے چھین لیا۔ جانتا ہوں وہ بہت خوبصورت ہے، اس لیے آپ کی نیت بھی خراب ہو گئی، پر میں زمل کو آپ سے واپس لے کر رہوں گا۔ زین ڈھٹائی سے بولا تو فرحات کو مزید غصہ آیا۔ اس نے اب کی بار آؤ دیکھا نہ تھا اور زین کو پیٹنا شروع کر دیا کہ وہ خود کو بچا بھی نہیں پایا۔ فرحات نے ٹیبل پر پڑی وائن کی بوتل اس کے سر پر دے ماری کہ زین کے سر سے خون نکلنے لگ گیا۔ زونی اس مار پیٹ سے ڈر کر پیچھے ہو گئی۔ یہ لاسٹ وارننگ ہے، آئندہ میری بیوی کا نام بھی مت لینا اپنی گھٹیا زبان سے۔ وہ غصے سے وارن کرتے وہاں سے چلا گیا تو زونی نے جلدی سے ایمبولینس بلوائی اور زین کو ہسپتال لے گئی۔ اس کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی۔ وہ فرحات پر بہت غصہ تھا، پر فی الحال وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے زین کو گھر سے نکال کر اچھا نہیں کیا، ہمارا بیٹا بے گناہ ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، ناہید نے احمد سے کہا جو ٹی وی پر نیوز دیکھ رہے تھے۔ اس بات پر رک کر انہیں دیکھنے لگے۔ تم کہہ رہی ہو کہ تمہارا بیٹا بے گناہ ہے، جس نے زمل کے ساتھ زیادتی کی اسے جیتے جی مار دیا، اور تم ابھی بھی اسے بے گناہ کہہ رہی ہو؟ وہ غصے سے بولے، میرا مطلب ہے کہ اگر زین نے یہ سب کیا بھی ہے تو لڑکی کی رضامندی کے بنا وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ ضرور زمل نے اسے ورغلایا ہوگا، وہ پوری طرح زین کو پروٹیکٹ کر رہی تھیں۔ بس ناہید آگے ایک لفظ نہیں، بیٹے کی محبت نے تمہیں اندھا کر دیا، ورنہ تم یہ بولنے سے پہلے 100 بار سوچتی۔ احمد انگلی اٹھاتے دھاڑ کر بولے تو وہ خاموش ہو گئیں۔ پلیز آپ زین کو معاف کر کے گھر بلا لینا، کتنے دن ہو گئے ہیں میں نے اپنے بیٹے کی شکل تک نہیں دیکھی۔ تھوڑی دیر گزری تو وہ پھر استفسار کرنے لگیں، تمہارا بیٹا اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا، اب میں مزید بحث نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے والیوم تیز کر دیا تو ناہید بیگم بھی خاموش ہو گئیں۔ نائم نے دادی کو منا لیا تھا، وہ راضی تھی، بس انہیں وقتی غصہ تھا۔ انہیں نور بہت پسند آئی تھی، سو وہ آج پھر آئی ہوئی تھی اور نور کی منگنی کی رسم کر ڈالی اور ساتھ ہی شادی کی تاریخ بھی مانگی۔ تو فاطمہ اور احمد نے مشورہ کر کے اگلے ماہ کی تاریخ فائنل کر دی۔ اسی بہانے گھر میں رونق آ گئی تھی، زمل کی طبیعت بھی بہل گئی تھی، صبرینہ بھی آئی ہوئی تھی۔ وہ زمل سے ابھی بھی حسد کرتی تھی، حالانکہ اب وہ اس کے لیے کسی خطرے کا باعث نہیں تھی، پر وہ زین کے بچے کی ماں بننے والی تھی، یہ تکلیف کسی طور پر کم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔
دائم دادی کے ساتھ نہیں آیا تھا، دادی نے خود ہی ڈیٹ فائنل کر لی تھی۔ جب گھر آ کر انہوں نے دائم کو سرپرائز دیا تو وہ خوشی سے نہال ہو گیا۔ دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ زین کے زخم اب پہلے سے بھر گئے تھے، لیکن وہ زمل کو بھول نہیں سکتا تھا۔ فرحاد نے ایک تو زمل کو اس سے چھین لیا تھا، الٹا اسے مارا پیٹا تھا۔ وہ فرحاد سے بھی بہت خفا تھا، پر فی الحال وہ گھر نہیں جا سکتا تھا۔ صبرینہ اسے روز کال کرتی تھی اور ساری اپڈیٹس دیتی تھی۔ وہ بے دلی سے لیٹا موبائل یوز کر رہا تھا جب ناہید کی کال آئی۔ جی مام، زین تم کیسے ہو؟ میں تمہیں بہت مس کرتی ہوں بیٹا، وہ محبت سے بولی۔ لگتا تو نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو اب تک آپ مجھے گھر واپس بلا چکی ہوتی، وہ بیزاری سے بولا۔ ایسی بات نہیں ہے زین، تمہارے ڈیڈ نہیں مان رہے، پر آپ انہیں منا تو سکتی ہیں مام۔ اچھا میری بات سنو، ایک طریقہ ہے تم شادی کے لیے راضی ہو جاؤ، میں تمہارے ڈیڈ کو منا لوں گی، ناہید نے کہا۔ اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے مام؟ زمل کی شادی تو آپ لوگوں نے فرحاد بھائی سے کر دی، وہ سخت بیزار ہوا تھا۔ بے وقوف، زمل کا یہاں کیا ذکر؟ میں تمہاری شادی صبرینہ سے کروانا چاہتی ہوں، وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ نہیں مام، مجھے زمل کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرنی، وہ بضد ہوا۔ آخر ایسا کیا ہے اس زمل میں جو تم دونوں بھائیوں کو اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا؟ وہ بیزار ہوئی تھیں۔ میں بچپن سے اسے پسند کرتا ہوں، وہ میری تھی، پر آپ لوگوں نے اسے مجھ سے چھین کر فرحاد بھائی کو دے دیا۔ وہ اب بھی زمل کے پیچھے پڑا تھا۔ میں تم سے صبرینہ کی بات کر رہی ہوں، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گی۔ اس دن بھی جب سب تمہارے خلاف تھے وہ تمہیں پروٹیکٹ کر رہی تھی، تمہیں اسی سے شادی کرنا ہوگی، اور یہی ایک طریقہ ہے گھر واپس آنے کا۔ ناہید نے اسے باور کروایا۔ اوکے کروا دیں اس سے شادی، کیا فرق پڑتا ہے، پر میں زمل کو نہیں بھلا سکتا، وہ ابھی بھی میری ہے۔ وہ راضی ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے پھر میں کرتی ہوں بات، ناہید نے کہا اور فون رکھ دیا تو وہ بھی بے دلی سے موبائل بند کرتے سو گیا۔ نور بہت خوش تھی، دائم اسے اچھا لگتا تھا جس نے عزت سے اس کا رشتہ مانگا تھا اور اب اس شادی کر رہا تھا۔ وہ اپنی منگنی کی انگوٹھی دیکھ کر مسکرا رہی تھی جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ انجان نمبر دیکھ کر اس نے حیرت کا مظاہرہ کیا، پھر فون اٹھا لیا۔ ہیلو، منگنی مبارک ہو نور، دائم کی گمبھیر آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ دائم آپ؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ جی دائم، آپ کا نیا نویلا فیانسی، وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تو نور کی ہنسی چھوٹ گئی۔ نئی نویلی دلہن سنا ہے، یہ نیا نویلا فیانسی کیا ہوتا ہے؟ وہ ہنس کر پوچھنے لگی۔ وہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ تمہیں انگیجمنٹ رنگ کیسی لگی؟ وہ اشتیاق سے پوچھ رہا تھا۔ بہت پیاری، وہ رنگ دیکھتے ہوئے مسکرائی تھی۔ بس اب جلدی سے میری ہونے کی تیاری کرو، تم سے بہت باتیں کرنی ہیں، وہ پرجوش لگ رہا تھا۔ اچھا آپ سب کو بہت جلدی ہے، پر میں نے تو ابھی مائنڈ بھی نہیں بنایا تھا شادی کا، اور ابھی میری اسٹڈیز بھی رہتی ہیں۔ نور اس رشتے پر خوش تھی پر اتنی جلدی پر نروس بھی تھی۔ فکر نہیں کرو نور، جو ہو رہا ہے ہونے دو، میں ہوں نا، تمہیں آگے پڑھاؤں گا بھی اور جو کہو گی وہی کروں گا، بس تم جلدی سے شادی کی تیاری کرو، وہ یقین دلاتے ہوئے بولا تو نور بھی خاموش ہو گئی۔ اب کچھ بولو بھی، نائم نے کہا۔ تھینک یو، نور نے اتنا ہی کہا۔ جب ابیرہ کمرے میں داخل ہوئی تو نور جلدی سے بولی، اچھا میں آپ سے پھر بات کرتی ہوں، اللہ حافظ۔ نور نے فون رکھ دیا۔ وہ جانتی تھی ابیرہ اس کی واٹ لگائے گی۔ کس سے باتیں ہو رہی ہیں؟ ابیرہ اسے مشکوک نظروں سے دیکھ کر بولی۔ کسی سے بھی نہیں، نور جلدی سے بولی۔ اچھا تو دائم بھائی سے بات کر رہی تھی تم؟ ابیرہ اسے چھیڑ کر بولی تو نور مسکرائی تھی۔ نہیں، وہ بس ان کی کال آئی تھی کہ رنگ کیسی لگی، نور نے بتایا اور جلدی سے کمرے سے نکل گئی، ورنہ ابیرہ اسے دائم کے نام سے تنگ کرتی رہتی۔ زمل اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی جب ہلکی سی دستک پر دروازہ کھلا اور فرحاد ہاتھ میں جوس لیتے داخل ہوا تو زمل اٹھ بیٹھی۔ یہ لیں میم آپ کا جوس، وہ اسے جوس پکڑاتے ہوئے بولا تو زمل نے منہ بناتے ہوئے تھام لیا۔ مجھے نہیں پسند، وہ برا منہ بنا کر پینے لگی کیونکہ جانتی تھی فرحاد اسے پلا کر ہی رہے گا تو وہ مسکرایا۔ مجھے ایک ضروری کام ہے، میں ابھی جا رہا ہوں، 7 بجے تک آ جاؤں گا، تم ریڈی رہنا، شاپنگ کے لیے جانا ہے۔ فرحاد کلائی پر بندھی گھڑی دیکھ کر بولا۔ شاپنگ پر کیوں؟ زمل حیران ہو کر پوچھا۔ نور کی شادی ہے نا نیکسٹ منتھ، دن ہی کتنے ہیں اور پھر مجھے ٹائم نہیں ملے گا، جلدی تو آج ہی چلتے ہیں، فرحاد نے کہا تو زمل نے سر ہلایا۔ پر میرا کوئی موڈ نہیں شاپنگ کا، بلکہ میں شادی بھی اٹینڈ نہیں کرنا چاہتی، وہ بے دلی سے بولی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو، کیوں اٹینڈ نہیں کرو گی شادی؟ فرحاد نے حیرانگی سے پوچھا۔ شادی میں سب لوگ آئیں گے، میں سب کا سامنا نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی کسی کے طنز سننا چاہتی ہوں، نہ مجھ میں اتنا حوصلہ ہے اب، وہ جوس کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔ ادھر دیکھو میری طرف، فرحاد نے اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے کہا۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، کسی کی اتنی ہمت نہیں کہ وہ میری بیوی پر طنز کرے یا کوئی فضول بات کرے، میں اس کا منہ توڑ دوں گا جو تمہیں پریشان کرے گا، فرحاد نے یقین دلاتے ہوئے کہا تو زمل کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ تھینک یو فرحاد، میں آپ کا احسان ہمیشہ یاد رکھوں گی، پر آپ سمجھ کیوں نہیں رہے، میں کسی سے بھی نہیں ملنا چاہتی، وہ آنکھوں میں آیا پانی صاف کر کے بولی۔ کیسی باتیں کریو، کون سا احسان، وہ برا مان کر بولا۔ میں نے تم پر کبھی کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ میں تو تمہارا احسان مند ہوں کہ تم میری زندگی میں آئی، وہ اس کے آنسو صاف کرتے نرمی سے بولا تو زمل نم سا آنکھوں سے مسکرائی۔ آپ بہت اچھے ہیں فرحاد، پر میں آپ کی محبت کے قابل نہیں، وہ نظریں جھکاتے ہوئے بولی۔ پھر سے وہی بات، کیوں سوچتی ہو ایسی باتیں، تم میرے لیے بہت خاص ہو زمل، خود کو بے مول مت کرو، وہ نرمی سے بولا تو زمل نے اس کی جانب دیکھا اور پھر خاموشی سے لیٹ گئی۔ چلو تم آرام کرو، میں آتا ہوں، تھوڑی دیر میں ریڈی رہنا، وہ اس کا بستر درست کرتے چلا گیا تو زمل نے نم آنکھوں سے اسے جاتے دیکھا۔ وہ کتنا اچھا تھا، زمل کی کتنی پرواہ کرتا تھا، وہ فرحاد کے متعلق سوچنے لگی کہ تھوڑی ہی دیر میں اس کی آنکھ لگ گئی۔
मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम जैन की शादी सबरीना से करवा दें, वो जैन को बहुत पसंद करती है। नाहिद ने अहमद से कहा, ये ख्याल कहाँ से आ गया तुम्हें? और जैन को तो मैं किसी सूरत माफ़ नहीं करने वाला। वो भड़क कर बोले, देखें, आप इसकी गलती माफ़ नहीं कर सकते क्या? और वो खुद भी शर्मिंदा है, बल्कि सबरीना उसे सुधार देगी। प्लीज़ उसे एक मौका दे, वो आपका ही बेटा है। नाहिद उनकी मिन्नत करके बोली, तुम्हें उसका गुनाह नजर नहीं आ रहा क्या? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। देखें, मैं मानती हूँ उसने गलत किया है, पर ये इस अकेले की नहीं गलती, जमल बराबर की शरीक है। अब वो खुद पारसा बनकर मेरे बेटे को गुनाहगार साबित करने पर तुली है। वो तलखी से बोली, बस बहुत हो गया, तुम्हें तो बस जमल बुरी लग रही है। सिर्फ जैन पर पर्दा डालने के लिए तुम जमल पर इल्ज़ाम लगा रही हो। वो गुस्से से बोले, अच्छा छोड़ेंगे जमल नामा, मैं आपसे जैन और सबरीना की बात कर रही हूँ। नाहिद ने कहा तो वो खामोश हो गए। जब तक वो जमल से माफ़ी नहीं मांगेगा या जमल उसे माफ़ नहीं करेगी, तब तक मैं उसकी शादी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वो गुस्से से बोलते कमरे से निकल गए तो नाहिद ने अफसोस से इन्हें देखा। जब फरहाद आया तो जमल और वो दोनों शॉपिंग पर चले गए थे। फरहाद ने उसके लिए बहुत सारी शॉपिंग की थी। वो चाहता था जिमल की हर चीज़ परफेक्ट हो, और जिमल ने कुछ खास ना खरीदा, बस फरहाद की पसंद की चीज़ें लेती गई। आपने सब मेरे लिए ही लेना है क्या, अपने लिए नहीं? जिमल ने उसे कहा तो वो जेंट्स वैरायटी की तरफ आया। चलो अब मेरे लिए तुम कपड़े पसंद करो। फरहाद ने कहा तो वो बौखला गई। मैं कैसे करूँ, आप खुद कर लेना। मैंने तो ऐसे नहीं किया, तुम्हारे सारे कपड़े पसंद किए, अब अपनी दफ़ा तुम बदल रही हो। वो बुरा मनाते हुए बोला तो बाद में नाख्वास्ता उसे फरहाद के लिए शॉपिंग करना पड़ी, जिस पर वो बहुत खुश हुआ। शॉपिंग के बाद वो दोनों ने डिनर किया और फिर रात 10 बजे वो घर आए। जब वो आए तो नाहिद लाउंज में ही बैठी थी। जिमल को घूर कर देखने लगी। मेरे बेटे को सही उल्लू बनाया हुआ है तुमने। पहले जैन को अपने पीछे पागल किया हुआ था और अब फरहाद को। वो जिमल पर तंज करके बोली, फरहाद अभी अंदर नहीं आया, वो गाड़ी से शॉपिंग बैग्स निकाल रहा था। मामी, मैंने आपके किसी बेटे को नहीं कहा कि मेरे पीछे पागल हो। जिमल ने संजीदगी से कहा, अच्छा तो फिर सबके सामने मजलूम तो खूब बनना आता है तुम्हें। तुम्हारी वजह से अहमद जैन को घर नहीं आने देते। वो जिमल को कसूरवार ठहराते हुए बोली, डैड ने जैन के गुनाह की वजह से उसे घर नहीं आने दिया। और मामा प्लीज जिमल को तंग मत कीजिए, वो पहले ही ठीक नहीं रहती। फरहाद वहां आते हुए बोला, ठीक है तुम भी करो उसकी हमायत, तुम्हें भी शीशे में उतार लिया इसने। वो तल्ख होकर बोली, मामा आप जिमल को क्यों गलत समझती हैं? ये वही जिमल है जिसे कल तक आप बहुत प्यार करती थी। फरहाद ने उन्हें समझाना चाहा, तब मैं इसकी असलियत से वाकिफ नहीं थी। वो जमल को घुरते वहां से चली गई और जमल की आंखों में आंसू आ गए। जिमल प्लीज मामा की बातों पर ध्यान मत दो, वो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएंगी। वो सिर्फ जैन की वजह से ऐसे कर रही हैं, तुम प्लीज रो नहीं। फरहाद उसके आंसू साफ करके बोला तो उसने खामोश नजरों से फरहाद को देखा। इन नजरों में एक मान था, तशक्कुर था। फरहाद ने मोहब्बत से उसे देखा और उसका मान टूटने नहीं दिया। घर का माहौल पहले से बेहतर हो गया था। नूर की शादी की तैयारियों ने पिछले दिनों की सारी तलखी खत्म कर दी थी। जिमल का भी दिल बहल गया था, पर अंदर से वो अब भी परेशान रहती थी। नूर की शादी में कुछ दिन रह गए थे, सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे थे। ऐसे में बस अगर कोई ना खुश था तो वो थी नाहिद बेगम, जो जैन के लिए बहुत परेशान थी। आज वो और अहमद नफीस के घर आए थे जैन और सबरीना के रिश्ते की बात करने। नफीस और फारिया पहले तो सोच में पड़ गए, फिर नफीस सोचकर बोले, भाई साहब जिमल के साथ जो हुआ वो जैन ने किया या फरहाद ने, मैं नहीं जानता, पर मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। नफीस तुम टेंशन ना लो, जैन और फरहाद दोनों बेकसूर हैं। जिमल खुद ही ठीक नहीं थी, तुम अपने भाई और मुझ पर भरोसा करो, हम सबरीना को खुश रखेंगे। नाहिद ने लजाजत से कहा था, देखें भाभी, मैं अंधा नहीं हूँ, वो मेरी भी भांजी है और मैं आपके बेटों की जमानत नहीं दे सकता, लिहाजा मेरी तरफ से इनकार है। वो इनकार करके बोले, ऐसे ना कहो नफीस, सबरीना खुद भी जैन को पसंद करती है। नाहिद ने कोशिश की, बस भाभी मैंने नहीं करनी अपनी बेटी की शादी। वो दू बदू बोले। फारिया खामोश रही। फारिया तुम ही समझाओ नफीस को, नाहिद ने कहा। अहमद खामोशी रहे, वो बस नाहिद की जिद की वजह से बात करने आए थे, वो खुद भी ये सब नहीं चाहते थे। मैं क्या कह सकती हूँ भाभी, नफीस बेहतर जानते हैं। फारिया ने कहा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। तभी सबरीना लाउंज में आई और मजबूत लहजे में बोली, ये तुम क्या कह रही हो सबरीना, पागल हो तुम? नफीस ने उसे डांटा, प्लीज डैड, मैं जैन को बचपन से पसंद करती हूँ और मैं जानती हूँ वो बुरा नहीं है। जिमल ने उस पर इल्जाम लगाया है अपना और फरहाद भाई का अफेयर छुपाने के लिए। वो दो टोक बोली, देखो बेटा तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। फारिया ने समझाया, प्लीज मम्मी आप ऐसी बातें नहीं करें, मुझे जैन बहुत पसंद है और मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी, सो प्लीज आप लोग मान जाए। वो अटल लहजे में बोली तो थोड़ी पसोपेश के बाद वो लोग मान गए। ठीक है फिर ऐसा करते हैं, नूर की शादी के अगले माह की तारीख रख लेते हैं। नाहिद ने कहा, नहीं मैं चाहती हूँ इसी हफ्ते हम लोग सादगी से निकाह रख लेते हैं, मेरी जैन से बात हो गई है, वो भी यही चाहता है। सबरीना ने कहा तो सब उसके अंदाज पर हैरान हुए। वो लड़की होते हुए खुद ही सब तय किए बैठी थी। अगले हफ्ते ही सबरीना और जैन का सादगी से निकाह हो गया। जैन घर आ गया था, पर अभी तक जिमल से नहीं मिला था और ना ही फरहाद से उसका सामना हुआ था। घर में सभी जैन और सबरीना की इतनी जल्दी निकाह पर हैरान थे, पर खामोश थे। फरहाद शाम को घर आया तो जैन को लाउंज में बैठे देख तप गया, पर माँ की वजह से खामोश हो गया।
फरहाद, बेटा भाई को निकाह की मुबारकबाद दो। नाहिद ने फरहाद से कहा, जो निकाह के वक्त भी मौजूद नहीं था। मेरा कोई भाई नहीं है, अलबत्ता आप अपने बेटे को अच्छे से समझा दीजिएगा, मेरी बीवी से दूर रहे वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। वो गुस्से से बोलता ऊपर जाने लगा, पर रुक गया और जिमल के कमरे की जानिब बढ़ गया और दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो वो अपने बेड पर सर घुटनों में दिए बैठी थी। सब्ज रंग का लिबास पहने, आंखों में वीरानी थी। कैसी हो? जिमल को देखकर सारा गुस्सा झाग हुआ था। ठीक हूँ, वो खुला में देखते बोली। इतनी चुप चुप क्यों हो? किसी ने कुछ कहा है? वो उसके पास बैठते हुए बोला। वो आ गया है। वो क्यों आया है यहाँ? मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो किसी भी जज्बे से आ रही आवाज़ में बोली। मैं जानता हूँ जिमल, तुम उसे देखना भी नहीं चाहती, मैं खुद भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम फिक्र नहीं करो, हम जल्द ही यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे हमारे नए घर में। फरहाद उसकी गहरी आंखों में देखकर बोला था। तुम लोग कहीं नहीं जाओगे? भला इस हाल में जिमल अकेली कैसे रहेगी? कौन इसका ख्याल रखेगा? तुम तो ऑफिस चले जाया करोगे और फिर हम सब तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? फातिमा जिमल को देखने आई थी। फरहाद की बात सुनकर उन्होंने कहा, फूफो, जमल और मैं ऐसे माहौल में नहीं रह सकते। मैं जैन को देखता हूँ तो मेरा खून खौलता है। फरहाद ने कहा, तुम दोनों कहीं नहीं जा रहे, बस कोई जाएगा तो वो जैन और सबरीना होंगे। फातिमा ने हुक्मिया लहजे में कहा तो फिलहाल वो खामोश हो गया। जमल कुछ नहीं बोली, बल्कि बिस्तर उड़ते लेट गई। मैरून मैक्सी में डार्क मेकअप किए सबरीना प्यारी लग रही थी। इस वक्त वो जैन के कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी, पर जैन अभी तक कमरे में नहीं आया था। वो कब से उसका इंतजार कर रही थी। वो कुछ भी भूली नहीं थी, पर उसकी मोहब्बत इतनी अंधी थी कि वो जैन का गुनाह जानने के बावजूद भी उससे मोहब्बत करने पर मजबूर थी। उसकी नज़र में इस सब मामले में अगर कोई गुनाहगार था तो वो जमल थी, जिसे वो कभी चैन नहीं लेने देगी। इन्हीं सोचों में गुम वो जैन का वेट करने लगी। देखो जैन, मैंने बहुत मुश्किल से सबको राजी किया है। तुम्हें घर वापस लाने में कोई भी राजी नहीं था सवाई मेरे। तो अब जिमल को भूल जाओ, इससे दूर रहना। अपने भाई से अपना ताल्लुक दुरुस्त करने की कोशिश करो, इससे माफ़ी मांगो। फरहाद तुम्हें माफ़ कर देगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा। तुम्हें जिमल से दूर रहना है और सबरीना का ख्याल रखना, ठीक है? नाहिद उसे समझा रही थी और वो बेदिली से सुन रहा था। ओके मॉम, मुझे नींद आ रही है। ठीक है, जाओ, मेरी बातें याद रखना। वो तंबीह करके बोली तो वो सर हिलाते उठ गया और वो जिमल से मिलना चाहता था, पर अभी ये मुश्किल था, लिहाजा वो खामोशी से अपने कमरे में चला गया। फरहाद अपने कमरे में बैठा कोई फाइल देख रहा था जब जैन दस्तक देता अंदर दाखिल हुआ। फरहाद ने नफरत से उसे देखा। दफा जाओ, क्या लेने आए हो मेरे कमरे में? फरहाद फाइल रखकर गुस्से से बोला। भाई, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दे, मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। वह लहजा दुखी बनाते बोला। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, अगर खैरियत चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। फरहाद धाड़ कर बोला, भाई मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपकी नफरत नहीं सह सकता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। वो फरहाद के आगे हाथ जोड़कर बोला तो फरहाद ने 2 थप्पड़ उसके मुंह पर मारे। तुम मेरी नफरत नहीं सह सकते, और जमल, जो तुम्हारी हैवानियत सही, उसका क्या? तुम्हें तो अपना भाई कहते हुए भी शर्म आती है मुझे। वो गम गुस्से से बोला था। प्लीज़ भाई, मैं नशे में था, बहक गया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई। वो नूस हाथ जोड़कर बोला था। निकल जाओ मेरे कमरे से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, इससे पहले कि मेरा गुस्सा बढ़े, दफ़ा हो जाओ। फरहाद ने उसे कमरे से बाहर धक्का देकर कहा और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने मॉम से कहा भी था कि भाई नहीं मानेंगे, पर मॉम को शौक था मुझसे माफ़ी मंगवाने का। वो अपने गाल पर हाथ रखता मुंह बनाकर बोला और अपने कमरे में जाने लगा, जब एकदम हैरान होकर रुका। जमल भाई के साथ कमरे में नहीं थी, ना ही उसकी कोई चीज़ वहाँ थी। इसका मतलब दोनों अलग अलग कमरों में रहते थे, पर ऐसा क्यों? वो सोचकर हैरान हुआ और अपने कमरे में जाने के बजाय नाहिद के पास चला गया। तुमने फरहाद से माफ़ी मांगी? नाहिद ने उससे पूछा। मांगी थी, पर भाई ने माफ़ करने के बजाय 2 थप्पड़ मारे हैं यहाँ, उदनक कर बोला। वो आसानी से माफ़ नहीं करेगा, पर तुम हिम्मत मत हारना, मैं भी उसे मनाऊंगी कि वो तुम्हें माफ़ कर दे। नाहिद ने कहा। मॉम, एक बात तो बताएं, ये भाई और जमल अलग अलग क्यों रहते हैं? वो नाहिद की बात इग्नोर करते बोला। क्योंकि अभी दोनों का निकाह मुकम्मल नहीं, जब बच्चे की पैदाइश हो जाएगी तब उसकी रुखसती होगी। नाहिद ने उसे तफसील से समझाया तो वो मुस्कुराया था। ये तो बहुत ज़बरदस्त बात बताई आपने मुझे। अब तुम कोई फजूल हरकत ना करना, जिमल से बिल्कुल दूर रहना और सबरीना पर ध्यान दो, नाहिद उसे वार्न करते हुए बोली तो वो सर हिलाते चला गया। जैन की शादी को 2 दिन हो गए थे, पर अभी तक उसने जिमल को नहीं देखा था, ना ही फरहाद से दोबारा सामना हुआ था। आज ही नाहिद ने उसे सिंगापुर के 2 टिकट दिए थे ताकि वो हनीमून के लिए चला जाए। वो जाना नहीं चाहता था, पर मजबूरी थी। आज जैन और सबरीना की सिंगापुर की फ़्लाइट थी। जाने से पहले वो जिमल से मिलना चाहता था। फरहाद इस वक्त ऑफिस था, सो वो खामोशी से उसके कमरे की जानिब आया। दरवाज़ा खोला तो अंदर कोई नहीं था। वो मायूसी से पलट आया, फिर एक ख्याल के तहत किचन में आया। जमल वहीं थी, हल्के आसमानी रंग की लंबी कमीज पर स्वेटर पहने वो चूल्हे पर कुछ बना रही थी, जब किसी आहट के तहत पलटी और जैन को देखकर डर गई। वो फौरन वहाँ से जाने लगी जब जैन रास्ते में हाइल हुआ। प्लीज़ मेरी बात सुनो जमल, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई, पर मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम मुझसे दूर नहीं रह सकती। तो तुम मुझसे बहुत प्यार करती थी जमल। वो एक सांस में बोल रहा था। दूर रहो मुझसे, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वो नफरत और खौफ की मिली जुली कैफियत में बोली। क्यों? खुद को और मुझे धोखा दे रही हो। मैं तुम्हारी मोहब्बत हूँ और ये बच्चा भी मेरा है। हम खुशी खुशी रहेंगे, यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, बस तुम और मैं होंगे। प्लीज़ जमल,
मेरी बात मान जाओ। वो जमल का हाथ थाम कर बोला और जमल ने एक झटके से अपना हाथ छुड़वाया, जैसे किसी नापाक चीज को छू लिया हो। हाथ मत लगाओ मुझे, घटिया इंसान, दूर रहो मुझसे। तुम मेरे कुछ नहीं लगते, नफरत है मुझे तुमसे। आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। जमल उंगली उठाते उसे फौरन करते चली गई तो वो मायूसी से उसे देखता रह गया। शाम तक वो और सबरीना सिंगापुर के लिए निकल गए। अब उन्होंने अगले हफ्ते वापस आना था। नूर की शादी अच्छे से हो गई थी। जमल जो सोच रही थी कि शादी पर उसे लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, तो वो गलत थी, क्योंकि फरहाद ने उसे एक मिनट भी अकेला नहीं छोड़ा था। सब जमल से इज्जत से मिले थे। अब वो फरहाद की बीवी थी और फरहाद के होते हुए उसे कोई कुछ कहे तो ये हो नहीं सकता था। जिंदगी काफी हद तक रूटीन में वापस आ गई थी। जमल ने काफी हद तक समझौता कर लिया था फरहाद के समझाने पर। अब वो काफी बहल गई थी। जैन और सबरीना को गए 1 माह हो गया था, पर अभी तक उनकी वापसी नहीं हुई थी। जैन का एक्सीडेंट हो गया था। दरअसल जब वो सिंगापुर गए थे उसके चौथे रोज ही जैन सड़क क्रॉस करते हुए सामने से आते ट्रक को नहीं देख पाया था और उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसकी टांगें टूट चुकी थी और वो अपाहज हो गया। अब वो सारी जिंदगी चल नहीं सकता था। उसे अंदाजा नहीं था कि उसके किए की सजा उसे इतनी जल्द मिल जाएगी। वो इस खबर पर अंदर ही अंदर घुले जा रहा था कि अब वो सारी जिंदगी चल नहीं पाएगा। उसने सबरीना को घर बताने से बिल्कुल मना कर दिया था। वो खुद भी बहुत परेशान हो गई थी, पर वो जैन से बहुत मोहब्बत करती थी, तभी इस हाल में भी उसे नहीं छोड़ पाई थी। कभी उससे तंग आ जाती तो गुस्से से बाहर चली जाती, पर फिर वापस आ जाती और यूं ही चलता रहता। जैन मुकम्मल तौर पर सबरीना का मोहताज होकर रह गया था। वो समझ गया था कि खुदा ने उसे फौरन उसके गुनाह की सजा दी है, जिस पर वो बहुत रोता था, पर अब वक्त हाथ से निकल चुका था। वो पाकिस्तान वापस जाना चाहता था, जमील से अपने गुनाह की माफ़ी मांगना चाहता था, पर अभी वो वापस जाकर सबको मजीद परेशान नहीं करना चाहता था। सो कुछ अरसा वो यहीं रहने का इरादा रखता था। उसने नाहिद बेगम को फ़ोन करके कह दिया था कि वो और सबरीना कुछ माह सिंगापुर ही रहेंगे, जिस पर वो मान गई। वैसे भी यहाँ जैन को कोई घर में पसंद नहीं करता था, इसलिए कुछ अरसा वहीं रहने पर वो आमादा हो गई थी। वक्त तेजी से चल रहा था। जमील का लास्ट मंथ चल रहा था। फरहाद, अबीरा और फातिमा उसका बहुत ख्याल रखते थे। नाहिद बेगम का रवैया वैसा ही था, पर अब वो कम ही बोलती थी, बस जैन को याद करती थी और अब उसे वापस बुलाने पर मुसर थी। शाम का वक्त था। फरहाद जमल को लिए पार्क आया। वो दोनों बेंच पर बैठे डूबते सूरज को देख रहे थे। कैसी तबीयत है अब? बाहर आकर अच्छा फील कर रही हो ना? फरहाद ने जमील को की जानिब रुख मोड़े पूछा। जी, बाहर आकर अच्छा लग रहा है, जमील ने उसकी तरफ देखते हुए कहा और वापस आसमां की जानिब देखने लगी। जमल, वो देखो, वो बच्ची कितनी क्यूट लग रही है ना? फरहाद ने एक छोटी सी बच्ची की जानिब देखते हुए कहा। तो जमल ने इस तरफ देखा। वो 4-5 साल की छोटी सी बच्ची वाकई बहुत क्यूट थी। जी, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। जमल ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे भी ऐसी ही बेटी चाहिए, बस जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी हो। वो मुस्कुराकर बोला तो जमल हैरत से उसे तकने लगी। फरहाद, आपको बेटियां पसंद हैं? हाँ, बहुत ज्यादा। क्या आप इस बच्चे के लिए वाकई बहुत एक्साइटेड हैं? जमल ने उसके चेहरे पर कुछ खोजना चाहा। हाँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये हमारा बच्चा है, तुम्हारा और मेरा। मैंने इसे दिल से अपनाया है, क्योंकि ये तुम्हारे वजूद का हिस्सा है। मैं नहीं चाहता तुम पुरानी बातें सोचकर अफसरदा हो। बस खुश खुश रहो और अपना ख्याल रखो। सारी परेशानियां और फिक्रें मेरे लिए छोड़ दो। फरहाद ने नरमी से उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। तो जमल पुरसकून हो गई। आप बहुत अच्छे हैं फरहाद, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। जमल ने तशक्कुर से कहा। फिर वही बात, ये कोई एहसान नहीं किया, मेरी मोहब्बत तुम्हें एहसान लगती है? वो खफा होकर बोला। नहीं, आई एम सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं कहूंगी। गुड गर्ल। फरहाद मुस्कुराया और फिर से इस बच्ची को देखने लगा, जो अब अपनी मामा के साथ वापस जा रही थी। कुछ देर गुजरी जब जमल दर्द से कराई थी। फरहाद फौरन मुतवज्जो हुआ। जमल को ठंडे पसीने आने लगे। वो फौरन उसे लिए हॉस्पिटल चल गया था। जैन कब तक वापस आने का इरादा है? तुम्हारी शक्ल देखने को तरस गई हूं मैं। नाहिद बेगम फोन पर जैन से बात कर रही थी। मॉम, नेक्स्ट मंथ तक आ जाएंगे हम, आप परेशान ना हो। जमल और भाई कैसे हैं? ठीक है, वो दोनों खुश हैं। अब तो मैंने जमल को भी कुछ कहना छोड़ दिया है तुम्हारी वजह से। ऊपर से वो सबरीना है, फोन ही नहीं उठाती और अगर उठा भी ले तो गोलमोल बात करती है। पता नहीं आखिर क्या छुपा रहे हो तुम दोनों मुझसे। वो परेशानी से बोली। कुछ भी नहीं मॉम, आप फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ हम आ जाएंगे। क्या डैड अभी तक बहुत खफा हैं? नहीं, अब पहले कितना गुस्सा तो नहीं करते, लेकिन तुम्हारे बारे में पूछते भी नहीं कि तुम खैरियत से हो भी या नहीं। नाहिद बेगम ने बताया तो वो खामोश हो गया। चंद एक बातें करके उसने फोन रख दिया। ये वक्त उसने बहुत मुश्किल से गुजारा था। उसकी टांगें बिल्कुल खत्म हो चुकी थीं। वो व्हील चेयर पर ही आता जाता था। सबरीना गो के इसका ख्याल रखती थी, पर बाकायदगी से अपनी पार्टीज में जाती और अक्सर लेट आती थी। पर जैन ने इस पर कोई रोक टोक नहीं की कि वो अपनी मर्जी कर सकती थी। जैन अब इस पर एक बोझ था जिसे वो निभा रही थी। कभी कभी उसे अपने फैसले पर गुस्सा आता था कि उसने शादी में जल्दबाजी क्यों की। उसने अक्सर जैन से तलाक लेने का मुतालबा किया था, पर एक दिन उसे डॉक्टर से मालूम हुआ कि वो कभी मां नहीं बन सकती, तो उसने भी समझौता कर लिया, क्योंकि और कोई उसे ऐसे कबूल ना करता। वो दोनों ही अपने किए की सजा इस दुनिया में भुगत रहे थे। जमल ने बहुत ही प्यारी बच्ची को जन्म दिया था। वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी लग रही थी। फरहाद ने जब उसे अपनी गोद में उठाया
तो खुदा का शुक्र अदा किया और मोहब्बत से उसका माथा चूमा। बाकी सब भी बहुत खुश थे, अलबत्ता नाहिद बेगम खामोश थी। 2 दिन बाद वो अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई थी और आज फरहाद और जमल का हकीकी निकाह हुआ था, जिस पर फरहाद और जमल दोनों खुश थे। मैंने सोच लिया अपनी डोल का नाम। जमल बेड पर लेटी थी जबकि फरहाद बेबी को गोद में लिए उसके पास बैठा था। अच्छा, क्या नाम सोचा है आपने? जमल ने इश्तियाक से पूछा। हाले नूर, वो मुस्कुराकर बोला। क्यों डोल, आपको अपना नाम पसंद आया? साथ ही उसने बेबी से पूछा तो वो आंखें पिटपटाकर देखने लगी। बहुत प्यारा नाम है। जमल मुस्कुराई थी। मेरी बेटी है ही इतनी प्यारी कि उसे नूर का हाला ही कहा जाना है चाहिए। क्यों हाले नूर? फरहाद उसके नन्हे नन्हे हाथ चूम कर बोला तो वो मुस्कुराई, यानी उसे अपना नाम पसंद आया था। थैंक यू फरहाद, आप बहुत अच्छे हैं। मैं खुदा का बहुत शुक्र अदा करती हूँ जिन्होंने आपको मेरे लिए चुना। हाले नूर जब सो गई तो जमल फरहाद के हाथ थामते हुए कहा, जिस पर वो बहुत मसरूर हुआ। शुक्र तो मैं अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे 2 परियां एक साथ दे दी। मैं तुमसे हूँ और जमल तुम्हारे बिना तो अब जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं। बस खजा खत्म, हर तरफ बहार ही बहार है। वो मोहब्बत से बोला तो जमल ने मुस्कुराकर अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। जैन और सबरीना वापस आ गए थे। जैन की हालत देखकर सब हैरान रह गए। उसे इस हाल में देखकर सबको खुदा के इंसाफ पर यकीन आ गया था। नाहिद बेगम ने तो रो रो कर बुरा हाल कर लिया था, जिस पर फातिमा और अहमद ने उसे संभाला। जमल और फरहाद तो उसे देखना भी नहीं चाहते थे। रात डिनर के वक्त सब डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। जब जैन ने और सबरीना भी आ गए तो जमल और फरहाद उठकर जाने लगे, जिस पर अहमद साहब ने इन्हें रोक लिया तो मजबूरन वो दोबारा बैठ गए। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ, जैन ने कहा। मैं जानता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ, गुनाहगार हूँ। मैंने जमल के साथ बहुत बुरा किया, पर देखें अल्लाह ने मुझे इस दुनिया में ही सजा दे दी। मैं अपाहज हो गया, मुझे अगला गुनाह करने का मौका ही नहीं मिला। बल्कि मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने फौरन मेरी लगाम थाम ली, वरना मैं न जाने और क्या करता। मैं बहुत अजियत में वक्त गुजार रहा हूँ। प्लीज आप सब लोग मुझे माफ कर दें, बिलखुसूस तुम जमल। वो सबके आगे हाथ जोड़कर बोला। बोलते बोलते उसका गला रुंध गया। जमल तो उसकी बात पर नफरत से मुंह फेर कर चली गई, जबकि अहमद, फातिमा और अबीरा ने उसे माफ कर दिया। फरहाद बिना कुछ कहे जमल के पीछे चला गया। मैं आज वापस जा रहा हूँ भाई, क्या आप दोनों मुझे माफ नहीं कर सकते ताकि मेरी अजियत कुछ कम हो सके? आज जैन और सबरीना ने वापस सिंगापुर चले जाना था। वो वहीं रहने का फैसला कर चुका था, क्योंकि यहाँ से दूर रहना ही सबके हक में बेहतर था। जो हरकत तुमने की थी उस पर तो मैं तुम्हें कत्ल कर देना चाहता था, पर मुझे खुदा का खौफ था, तभी तुम्हें छोड़ दिया। बेहतर यही है कि यहाँ से चले जाओ और आइंदा अपनी शक्ल ना दिखाना। फरहाद ने गुस्से से कहा, जबकि जमल खामोशी से नूर को कंबल में कवर कर रही थी, जो अब सोने की तैयारी में थी। भाई प्लीज ऐसे मत कहें, एक बार मुझे माफ कर दें, मैं दोबारा आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। जैन इल्तजाई अंदाज में बोला। तभी हाले नूर रोने लगी तो जैन उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। क्या मैं अपनी बेटी से मिल सकता हूँ? उसकी आवाज में एक महरूमी सी थी। हरगिज नहीं, ये मेरी बेटी है, मेरी और फरहाद की। तुम इसके कुछ नहीं लगते, समझे? दफा हो जाओ यहाँ से। एकदम जमल तैश में आकर बोली और हाले नूर को चुप करवाने लगी। ठीक है, मैं नहीं मिलता इससे, प्लीज आप दोनों मुझे माफ कर दें। जैन ने इल्तजा की। माफ किया तुम्हें, अब जाओ यहाँ से। फिर से जमल बोली तो फरहाद हैरान हुआ था। जमल तुम? फरहाद बोला, मैंने इसे माफ किया, इसे कहें अब जाए यहाँ से। वो उसकी बात काट कर बोली, मैं कौन होता हूँ तुम्हें माफ करने वाला? अब ये तुम्हारा और अल्लाह का मामला है। अगर जमल तुम्हें माफ कर चुकी है तो तुम अब जा सकते हो। फरहाद ने उसे कहा तो वो खामोशी से व्हील चेयर धकेलता पलट गया। 5 साल बाद आज हाले नूर की बर्थडे थी। वो 5 साल की हो गई थी। वो बहुत प्यारी और क्यूट बच्ची थी, बिल्कुल जमल पर गई थी। वही शक्ल सूरत, वही आंखें। फरहाद की तो इसमें जान बसती थी। जमल और फरहाद हर साल उसकी बर्थडे अच्छे से मनाते थे। हाले नूर से 3 साल छोटा अजान भी सबकी जान था। वो जमल को तो बहुत ही प्यारा था। दाइम और नूर भी बहुत खुश थे। उनके 3 बच्चे थे जो कि सबको बहुत प्यारे थे। अबीरा और नौफल की भी शादी हो गई थी। नाहिद बेगम भी अब जमल से पहले की तरह मोहब्बत करती थीं और अपने पुराने रवैये पर शर्मिंदा होती थीं। बस वो जैन की मासूरी और बे औलादी पर परेशान होती थीं, लेकिन अल्लाह की रजा में राजी थीं। जमल की जिंदगी बहुत पुरसुकून गुजर रही थी। अल्लाह ने अगर उसे आजमाइश में डाला था तो फरहाद की सूरत बहुत खुशियां भी दी थीं, जिस पर वो खुदा की बहुत शुक्रगुजार थी।